Wait 1 minute. ગુડ મોર્નિંગ સૌને. એઆઈ આસિસ્ટેડ ટીચર્સ ના આ વર્કશોપમાં શ્રીમતી એમ શાહ કોલેજ આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે. હું અમારા તાલીમાર્થી શ્રી જયદેવભાઈને વિનંતી કરું કે આપણા ઉદ્ઘાટન સમારોહની શરૂઆત કરે. Good morning everyone. શ્રીમતી એમ શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન વઢવાણ ના એઆઈ આસિસ્ટેડ વર્કશોપમાં હું માનનીય શાંતિલાલ ઘોરણિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે કોલેજનો પરિચય અને પ્રતિભાગીઓનું સ્વાગત કરે. શ્રી શાંતિલાલ ઘોરણિયા સાહેબ. નમસ્કાર મિત્રો, પ્રણામ. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. AI assisted teachers empowering the teaching skill ઓનલાઈન વર્કશોપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રીમતી એમ શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન વઢવાણ અમારી આ સંસ્થા વિકાસ વિદ્યાલય સંચાલિત છે. 1972 થી શ્રીમતી એમ શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન એજ્યુકેશન દ્વારા ચાલતી આ સંસ્થા, અમારી સંસ્થા ગાંધી પ્રણાલિકાથી શરૂ થયેલી અને ગાંધી મૂલ્યોને ધ્યાનમાં રાખી આજની તારીખમાં પણ સારામાં સારા શિક્ષક પ્રશિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ. સમાજની અંદર ઉત્તમ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પામેલા આદર્શ શિક્ષકોનું નિર્માણ કરવાનો પ્રયાસ અમારી સંસ્થા મારફત વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે. અમને એ વાતનું ગૌરવ છે કે ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં અમારે ત્યાંથી પ્રશિક્ષણ મેળવીને સારામાં સારી જગ્યાએ પ્રાઇમરી શિક્ષક તરીકે અથવા માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ વ્યવસાયોમાં પણ કોલેજ કક્ષાએ પ્રોફેસરશીપમાં પણ અમારા તાલીમાર્થીઓ જોડાયા છે. મને એ વાતનું ગૌરવ છે કે 1972 થી સ્થપાયેલી અમારી આ સંસ્થામાં પ્રાણ રેડનાર અને ફાઉન્ડર તરીકે પુષ્પાબેન મહેતા અને અરુણાબેન દેસાઈનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે. આજના આ ઓનલાઈન વર્કશોપમાં આજે અમે અમારા સંસ્થાના હાલના ધોરણદારો અમારા પ્રમુખ શ્રી કોકિલાબેનને પણ યાદ કરું છું અને માનનીય રાણા સાહેબને પણ યાદ કરું છું. બંનેની સંમતિથી આજનો આપણો આ ઓનલાઈન વર્કશોપ શક્ય બન્યો છે. એટલે સૌપ્રથમ અમારા સંસ્થાના બંને ધોરણદારો પ્રમુખશ્રી અને મંત્રીશ્રીનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણા ઓનલાઈન AI assistant teachers empowering the teacher skill માટેના આ વર્કશોપમાં સમગ્ર દિવસ દરમિયાન જોડાનાર તમામ બીએડ એમએડ તાલીમાર્થીઓ, એડ એમએડ કક્ષાએ કામ કરતા આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, પ્રોફેસરશ્રી અને તમામ પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, વિવિધ યુનિવર્સિટીમાંથી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જોડાયેલા વિવિધ અધ્યાપક મિત્રો, વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટના HOD શ્રી, તમામનું આ ક્ષણે હું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. તેમજ સમગ્ર દિવસ દરમિયાન જે કઈ પ્રવૃત્તિઓ ઓનલાઈન આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ એમાં સૌપ્રથમ આ વર્કશોપની અંદર ભાવનગર કૃષ્ણકુમાર સિંહજી યુનિવર્સિટીના ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ પ્રોફેસર ડોક્ટર દિલીપભાઈ બારડ સાહેબ કે જે તમને સૌપ્રથમ અધ્યક્ષતાને રહીને એ વંદનીય રીતે આપ સૌને સંબોધિત કરવાના છે અને એડ્રેસિંગ કરવાના છે. ત્યારે સૌપ્રથમ હું પ્રોફેસર ડોક્ટર દિલીપભાઈ બારડ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણો સમગ્ર વર્કશોપ જે છે એ 2 ફેઝમાં ચાલવાનો છે. સેકન્ડ ફેઝમાં અમારી સંસ્થાના શ્રીમતી એમ શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનના ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ સાથે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે અને સમગ્ર કાર્યભાર આ બાબતનો સંભાળતા ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ ગોહિલ કે જે સમગ્ર સેકન્ડ સેશન એ આપણને સાથે જોડાઈને એ આસિસ્ટન્ટ સમગ્ર કામગીરી વર્કશોપના સ્વરૂપે એ સંભાળવાના છે. અમારા જિગ્નેશ સરનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કાર્યક્રમને અંતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કે જેમાં
પ્રોફેસર ડોક્ટર અતુલભાઈ ગોસાઈ, પ્રોફેસર છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કમ્યુનિકેશન સાયન્સમાં, એ કમ્પ્યુટર સાયન્સના હેડ પણ છે એવા પ્રોફેસર ડોક્ટર અતુલ ગોસાઈ સાહેબનું પણ હું અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને સમગ્ર કાર્યક્રમ આપણો ખૂબ જ રીતે સફળ એ માટેની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. हेलो, आभार साहेब आपनो। ત્યારબાદ હું હરેશભાઈ બાંભણિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આ વર્કશોપની આપણને બાબતે થોડીક વાત કરે. જયદેવસિંહ, એઆઈ ટીચર વર્કશોપમાં જોડાયેલા સૌ જ્ઞાન સાધકો, જ્ઞાન પીપાસુને મારા પ્રણામ. મિત્રો, રવિવારનો દિવસ હોય ને નવું શીખવા માટે સવારમાં 9:30 થી આપ સૌ જોડાયેલા છો. આ જ્ઞાન સાધના પ્રત્યેની તત્પરતાને સૌ પ્રથમ વંદન. આ વર્કશોપ એટલે કે અમારી કોલેજમાં, શ્રીમતી MM શાહ કોલેજમાં જ્યારે યોજાવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આ એક ઘણી બધી લાંબી પ્રક્રિયા અને સ્થાપિત મૂલ્યોનું પરિણામ છે એમ કહી શકાય. શ્રીમતી MM શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન માં કોઈ આવું એક સરસ જ્ઞાન સત્ર યોજવું, જ્ઞાન યજ્ઞ કરવું, આવી લાંબી ગડમથલ સતત સ્ટાફ મિત્રો વચ્ચે થતી રહેતી હોય છે. અને એમાંય અમારા કાચા સાધનો વચ્ચે પણ સમાજમાં અમારી પાસે જે જ્ઞાન છે એ નવા શિક્ષકોને અથવા તો જ્ઞાન માટે તત્પર રહેતા લોકોને વહેંચતું રહેવું, આવા મૂલ્ય સાથે આ વર્કશોપની શરૂઆત થઈ છે એમ કહી શકાય. જ્ઞાનની જીજીવિષા, જ્ઞાન લેવા માટેની આપની આ જે તત્પરતા છે, અમે એવું વિચાર્યું કે કદાચ કોઈ યુજીસી સ્પોન્સર્ડ હોય કે કોઈ મોટી ફંડિંગ એજન્સી દ્વારા હોય અને એમનું સર્ટિફિકેટ મળે તો જ લોકો જોડાય, એવું નથી. શીખવાની જેમને ખરેખર ઈચ્છા છે એવા લોકો જો આપણને જ્ઞાન મળે છે તો ગમે ત્યાંથી જોડાઈ શકે છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે કે આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં એ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છો, ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યરત છો, શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા છો, ત્યારે અહીં જોડાયા છો. એ અમારા વર્કશોપની અમારી જે વિચારસરણી છે એને બંધ બેસતું છે. મિત્રો, સમય સતત બદલાતો રહે છે અને શિક્ષણ જગત પણ હવે આઈસીટી અને આઈસીટી આગળ લઈ જઈએ તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના યુગમાં પ્રવેશ્યો છે. આવનારા સમયમાં આ અલીબાબાનું જીન અથવા તો એક એવો આસિસ્ટન્ટ બનવાનો છે આપણા માટે. ટીચર એમ કહેશે કે અમને આ કરી દો, કદાચ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના પ્લેટફોર્મ, એમના ટૂલ આપણને એ કામગીરી મિનિટો કે સેકન્ડોમાં કરી દે. આ આપણા માટે એક એવું જીન છે કે જે ગમે ત્યારે હકુ મુજોર આદેશ એમ કરીને આપણી સામે હાજર થઈ જશે. પણ એ પૂર્વે આપણને એમને ટેકલ કરવા માટે, એમને સુચારુ સંચાલન કરવા માટે, એમની ચોટીને આપણા હાથમાં રાખવા માટે આવા જ્ઞાન સત્રો, આવા વર્કશોપ, અહીં જ્યાં ખરેખર જ્ઞાન અથવા તો તલસ્પર્શી અને વાસ્તવિક એઆઈ ની વાત કરવામાં આવશે. મારે જિગ્નેશભાઈ આ બાબતે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે. એમની તો વાત કરીશું, પણ હું વાત કરી રહ્યો છું એઆઈ ટેકનોલોજી, એઆઈ આસિસ્ટન્ટ ટેકનોલોજી એ શિક્ષણને કેટલી રીતે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી રહી, કામ આવી રહ્યું. તો આવનારો સમય એ કદાચ આપણા સૌ માટે કલાકો થતા હતા. જે કામ શિક્ષક
આ જેવા કામને મિનિટોમાં કરતો. જોન થોર્નડાઇક એવું લખે છે કે પુસ્તકના 2-4 પાના જે કામ કરી શકે એ કામ માટે શિક્ષકને ખર્ચી ન નાખવો જોઈએ. તો જે કામ ક્લેરિકલ વર્ક કરી શકે એ માટે શિક્ષક ખર્ચાઈ જાય છે, એ ખર્ચને બચાવવા માટે, શિક્ષકને એમના નિષ્ણાંત બનાવવા માટેનો આ વર્કશોપ જ્ઞાન સાધના કહી શકાય એના ક્ષેત્રમાં એમણે અર્જિત કરેલું, એમના અનુભવોથી અર્જિત કરેલું આ જ્ઞાન આજે આપણે સુધી વહેંચવા માટે એવો આ વર્કશોપના માધ્યમથી અમારી કોલેજના પ્લેટફોર્મથી આપના સુધી પહોંચ્યા છે. તો આ વર્કશોપ બીજું કઈ નહીં પણ બનતાનો ગુલાલ કરવાની મનોવૃત્તિ છે. જ્ઞાનને સતત વહેંચતા રહેવું, જ્ઞાનને સતત બાંટતા રહેવું, નીરની જેમ વહેંચાતું આ જ્ઞાન એ હર હંમેશ તરોતાજા રહેશે. આ કોન્સેપ્ટ પર કામ કરતા મારા મિત્ર અને દિશામાં કંઈક ને કંઈક નવું રોજ લઈ આવતા જિગ્નેશભાઈ એ આજે આપણે સૌને આ વર્કશોપ લેવાના. મિત્રો આ એ પણ પ્રયાસ છે આ વર્કશોપ દ્વારા કે આપણી બિરાદરી, આપણો શિક્ષક સમાજ, અમારા આવનારા તાલીમાર્થીઓ કે સમાજમાં જ્યાં જ્યાં કઈ શિક્ષણ કાર્ય થાય છે એમને અપ ટુ ડેટ રાખવા, શિક્ષણના નવીનતમ પ્રવાહો એમને માહિતગાર કરવા. કદાચ એઆઈ ટેકનોલોજી અથવા તો એઆઈ એસિસ્ટેડ ટીચિંગ એ અભ્યાસક્રમમાં તો ક્યારેય ઉમેરાશે, કોઈ યુનિવર્સિટી કે બીએડમાં તો એ ક્યારેય ઉમેરાશે, કોઈ રિફ્રેશર કોર્સમાં તો એ ક્યારેય ઉમેરાશે. પણ આવા વર્કશોપના માધ્યમથી તમે આમને શીખી લેશો અને તમે આ ક્ષેત્રમાં અપ ટુ ડેટ રહેવા માટેના એક કદમ તરફ આગળ વધી રહ્યા. તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ, આ જ્ઞાન સત્ર એ બીજું નહીં પણ અમને જે આવડે છે અમારા કોલેજ પરિસરમાં જે કઈ નવનીત છે એમને આપણા સુધી વહેંચવાનો એક સંનિષ્ઠ પ્રયાસ. જિગ્નેશભાઈ નો કદાચ એક દિવસ એવો નહીં ગયો હોય કે મારી બાજુમાં બેઠા બેઠા એમને મને એક બધા ટૂલ નો પરિચય નહીં આપ્યો કે તું આનું આમ કરીએ. હજી ગઈકાલે જ અમે માઇક્રોસોફ્ટ ના પ્લેટફોર્મ ના જુદા જુદા ટૂલ ને તપાસતા હતા ત્યારે આવા સતત નવા ટૂલ શિક્ષકના કામને સરળ બનાવે છે એમનો એક પુંજ એ સતત એમણે મોરપીંછની જેમ ભેગો કર્યો અને આ પુંજ, આ મોરપીંછનો સરસ મજાનો એ આપણે સુધી પહોંચાડવો એ એમનો પ્રયાસ છે. મારા સાથી મિત્રને આ વર્કશોપની ભૂમિકા સાથે પણ બિરદાવું છું કે એને એક સમાજના શ્રેષ્ઠ કાર્યને મૂક્યું. બીજું તો કઈ નહીં. આજ આપણે સૌ જયારે આ વર્કશોપને પૂર્ણ કરીશું ત્યારે મને આશા છે અને વિશ્વાસ છે કે અહીં જોડાયેલા સાચા અર્થમાં જ્ઞાન સાધકો, જ્ઞાન ઉપાસુના જે જીજીવિષાના પ્લેટફોર્મ છે, ફલકો છે એ જીતી ઉઠવાના છે એની મને પૂર્ણ થતા રહે. આવા વર્કશોપ કોઈ પણ પ્રકારના ફંડ વગર થતા રહે અને કોઈ પણ પ્રકારના આડંબર વગર ખરેખર જ્ઞાન સાધના થતી રહે. એવા ખૂબ હેતુ સાથે, ખૂબ આશય સાથે આ વર્કશોપને ખુલ્લું મૂકીએ છીએ, આપના સુધી પહોંચાડીએ છીએ. મિત્રો આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપ સૌ જોડાઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. સર્વનું સ્વાગત છે. ધન્યવાદ સાહેબ. ત્યારબાદ હું જિગ્નેશભાઈ ગોહિલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજના આપણા વર્કશોપના મુખ્ય મહેમાન અને કીનોટ સ્પીકર ડોક્ટર દિલીપભાઈ બારડ સાહેબનું પરિચય અને એમનું સ્વાગત કરે. ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ ગોહિલ. થેન્ક યુ સો મચ. આજના આ વર્કશોપના મુખ્ય મહેમાન અને આપણી વચ્ચે જેમની તજજ્ઞતાનો આપણે લાભ લેવાના એવા ડોક્ટર દિલીપ બારડ સર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે સૌપ્રથમ હું સંસ્થા પરિવાર વતી એમનું સ્વાગત કરું છું. એનો પરિચય આપવાનું મારા ભાગે છે. આમ તો ટેકનોલોજી સાથે જે શિક્ષકો કામ કરે છે, જે અધ્યાપકો કામ કરે છે એ આ નામથી અજાણ્યા હોય એવું બને નહીં. કારણ કે ગુજરાતમાં આઈસીટી ને શિક્ષણમાં પ્રેક્ટિસમાં લેતા અધ્યાપકોમાં નામ જ્યારે લેવામાં આવે ત્યારે બારડ સાહેબનું નામ ચોક્કસપણે એમાં પાયોનિયર તરીકે આવે.
ડોક્ટર દિલીપ બારડ સર, મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજી, ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર છે. ખાસો એવો અનુભવ 25 વર્ષથી પણ વધારે ટીચિંગનો અનુભવ ધરાવે છે. મારા શાબ્દિક પરિચય કરતા આપણે એક ડિજિટલ અધ્યાપક છે ત્યારે એમનો ડિજિટલ પરિચય પહેલા જોઈ લઈએ. હું અહીંયાથી સ્ક્રીન શેર કરું છું અને એમના પરિચયને સ્ક્રીન ઉપર મૂકું છું. Here's Professor Dilip Barad, Dean Faculty of Arts, Professor and Head Department of English, M.K. Bhavnagar University, Gujarat. Professor Barad has an experience of 23 years of teaching to students belonging to various faculties like Commerce, Management, Computers, Humanities and Social Sciences. His areas of interest are computer-aided language learning, innovative use of ICT in teaching English, literature and literary theories. He has conducted workshops on the use of web tools for teaching in national and international conferences. He has penned books and articles on Thomas Hardy, Kamala Das, and modern communication and web tools for English teaching. He recently completed an e-content development project funded by MHRD, Government of India. He completed a UGC research project on technology and teaching English language and literature blended learning. તો એક ડિજિટલ પરિચય એમનો આપણે મેળવ્યો અને ચોક્કસપણે કહી શકાય કે એક યુનિક કામ બારડ સર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટીચિંગ પ્રેક્ટિસમાં એ કરી રહ્યા છે. આમ તો યુનિવર્સિટી લેવલના હોદ્દાઓ અને જે કંઈ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હોય એમાં તો એ હોય જ, પણ મને એમનો પરિચય એમના કામથી આપવાનું વધુ ગમે, કારણ કે અમારા જેવા શિક્ષકો કે જે આઈસીટીમાં થોડું ઘણું શીખવાની કોશિશ કરતા હોય એ લોકોને એમને અનુસરવાનું હંમેશા એમની પ્રવૃત્તિઓથી પ્રેરણા મળતી હોય છે. ફ્લિપ્ડ ક્લાસરૂમ મોડેલ હોય કે ટીચર ટ્રેનિંગ્સ હોય, અધ્યાપકોની યુજીસી એચઆરડીસી કે સ્વયં મુખ આધારિત ટ્રેનિંગ્સ હોય, અનેક શિક્ષકો અને અધ્યાપકોને એમની ટેકનોલોજીની જે કંઈ પ્રેક્ટિસીસ છે જુદી જુદી એમનો લાભ મળતો રહેતો હોય છે. ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ ઇંગ્લિશ સાહિત્યમાં એમનું ખેડાણ અને ટીચિંગ ક્રિટિસિઝમ પર તો હોય જ, પણ ઇંગ્લિશ લિટરેચર માટે થઈ એઆઈ ટૂલ્સ હોય કે ગૂગલ ટૂલ્સ હોય કે ઇવન ટેકનોલોજીના કોઈ પણ ટૂલ્સ હોય એમની પ્રેક્ટિસમાં મૂકવાનું કામ એ કરી રહ્યા છે. સૈદ્ધાંતિક બાબતો આપણે આઈસીટી અને એજ્યુકેશનને લઈને ઘણી બધી થતી હોય, ઘણા બધા વર્કશોપમાં થતા હોય, ઘણા બધા એક્સપર્ટ હોય, પણ ખરેખર ટીચિંગમાં પ્રેક્ટિસમાં મૂકવું એ એક પેઇન ટેકિંગ કામ છે કે એના માટે ઘણી બધું મહેનત અને ઘણી બધી કોશિશ પ્રયત્નો જોઈએ. બારડ સર એ એક્સપર્ટ છે કે જે ટીચિંગમાં આઈસીટી ને પ્રેક્ટિસમાં લઈ આવ્યા છે અને ઘણા બધા શિક્ષકો, ઘણા બધા એમના વિદ્યાર્થીઓના એ હંમેશા પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે. એમની સોશિયલ મીડિયામાં પણ એમની એજ્યુકેશનલ એક્ટિવિટીઝ હંમેશા શેર કરતા હોય અમને, અને એ હંમેશા એવી પ્રેરણા પણ આપતા હોય છે કે શક્ય હોય એટલો ફોલો આવી પ્રવૃત્તિઓને કરો, આઈસીટીની પ્રેક્ટિસને કરો, જેથી કરી અને ફ્યુચર માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરી શકાય. તો આવા એક તજજ્ઞ મારા કોઈ પણ વર્કશોપમાં અમે હંમેશા એક એવો ગોલ રાખતા હોઈએ છીએ કે વર્કશોપના થીમ આધારિત
મહેમાનોને આપણે આમંત્રણ આપીએ અને એ લોકોની એક્સપર્ટાઇઝનો આપણને લાભ મળે. એઆઈ આસિસ્ટેડ ટીચર્સની વાત હોય ત્યારે બારડ સરનું નામ અચૂક એમાં લેવું પડે. હંમેશા નવા ટૂલ્સ અને નવી ટેકનોલોજીસને એ શેર કરતા રહેતા હોય છે અને આપણા સુધી એ વહેંચતા હોય છે. તો અહીં એમનો પરિચય આ હતો. સ્વાગત કરું છું દિલીપ બારડ સરનું કીનોટ સ્પીકર તરીકે આ વર્કશોપના, અને એમને વિનંતી કરું કે હવે પછી એનું પોતાનું વ્યાખ્યાન છે એ રજૂ કરે. બારડ સર. જી નમસ્તે. નમસ્તે જિગ્નેશભાઈ અને રૂપલબેન પણ દેખાઈ રહ્યા છે. આપને પણ નમસ્કાર. અને સૌ મિત્રો, तो बहुत एक अच्छा आयाम जिग्नेश भाई ने यहाँ पर सेट किया है कि पूरे दिन का एक वर्कशॉप वो आयोजित कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स और ट्रेनीज को खास करके वो पूरे दिन एआई के उपयोग के माध्यम से क्या हो सकता है एजुकेशन में उसकी बात करेंगे. ये आइडिया बहुत अच्छा है कि टीचर ट्रेनर्स जो आजकल कॉलेजेस में बीएड कॉलेजेस में तैयार हो रहे हैं उन सब के लिए कुछ काम किया जाए बहुत जरूरी है. फ्यूचर की बात अगर हम देखें तो जो टीचर्स मैच्योर हो चुके हैं, जो मिडिल एज को पार कर चुके हैं, उनमें थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा रहता है. नई चीजें स्वीकार करना ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी रही है कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाए तब हम थोड़े स्लो हो जाते हैं. नई चीजें स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कतें आती है. हमारी हैबिट ऑफ माइंड जो होती है ना वो थोड़ी अलग प्रकार से डेवलप हुई है. ये जो पूरा खेल है, अगर हम साइकोलॉजी समझे तो पूरा खेल दिमाग का ही है. हम दिमाग से युवा रहे तो किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं. लेकिन अगर दिमाग से हम वृद्ध हो जाए तो कोई भी 20 साल में भी हम कुछ नहीं सीख सकते. तो ये पूरी चीज है. और जैसे ऑल्वेन टॉफलर जैसे लोग कहते थे कि 21वीं सदी का बड़ा प्रश्न जो होगा वो लर्निंग नहीं होगा, पर वो अनलर्निंग और रीलर्निंग होगा. अनलर्न करना, जो सीखा है उसको थोड़ा भूलना पड़ेगा और फिर नए तरीके से कुछ सीखना पड़ेगा. तो हम जैसे लोग जो 20वीं सदी में तैयार हुए हैं, जैसे मैं 1970s में बॉर्न हुआ तो हमारा पूरी एजुकेशन 20वीं सदी में हुई. तो हमारी बेंट ऑफ माइंड अलग हो सकती है. हमारे लिए नए आयाम में, नई दुनिया में सेट होना मुश्किल हो जाता है. अगर हम ये चौकन्न न रहे कि लाइफ लॉन्ग लर्नर अगर बनना है तो कुछ टेंडेंसीज बदलनी ही होगी. हम स्टूडेंट्स को बहुत बार सिखाते हैं कि बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, पर हम टीचर्स ज्यादातर फेल होते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए. हमने कोरोना के समय में भी ये देखा कि टीचर्स के लिए नई चीजें जल्दी से सीख लेना बहुत मुश्किल था. बहुत सारे टीचर्स कर भी पाए और बहुत सारे नहीं भी कर पाए. दोनों तरीके से हमने ये देखा. लेकिन जो न कर पाने वाले थे वो टीचर्स क्या करते थे, जैसे हमारी उम्र के जो टीचर्स थे वो अपने या तो स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन पे रिलाई करते थे. अगर उनको ऑनलाइन जुड़ना है तो अपने स्टूडेंट्स को बताइए या अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को वो कहते हैं कि आप. किसी का माइक शायद चालू है. ओके. तो वो उस हिसाब से वो करते थे. बहुत सारे लोगों ने सीखना शुरू भी कर दिया और बहुत सारे सीख नहीं भी पाए. हम जानते हैं कि कोरोना टाइम के एजुकेशन की जो कोई भी सर्वे होंगे किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि इट वाज अ फेलियर. सब निराश हुए ज्यादातर ऑनलाइन शिक्षण जो हुआ उससे. उसके रीजंस में अगर जाए तो एक बहुत बड़ा रीजन ये उभरता है कि हम ऑनलाइन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस जो है उसमें तैयार नहीं हुए थे. हम फेस टू फेस टीचिंग करने के लिए तैयार हुए और अचानक हमको जोक दिया ऑनलाइन में कि अब आप ऑनलाइन पढ़ाओ. तो फिर क्या होता कि हम जो ऑफलाइन करते हैं वही ऑनलाइन करने लगे. तो कुछ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस का अभाव, सबसे पहला अभाव जो आता है, जो हम चैलेंजेस देखने का प्रयास करें कि
एआई की चैलेंजेस देखे उससे पहले डिजिटल पेडागोजी की चैलेंजेस, अगर हम देखें डिजिटल पेडागोजी की, फिर हम एआई की ओर आते हैं। तो सबसे पहली चैलेंज जो आती है वो कि क्या हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो जो टीचर्स 20वीं सदी में तैयार हुए उनके पास ऑनलाइन लर्निंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे कुछ था ही नहीं ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से 20वीं सदी में। तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि किसी भी टीचर के पास वो अनुभव हो। सेल्फ एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हम कहते हैं वो जब तक ना हो तब तक ये बहुत मुश्किल रहता है। टीचिंग प्रोफेशन में हमने ये देखा है, आप सब लोग भी इस बात से स्वीकृत होंगे कि हमारे लिए आदर्श टीचिंग पद्धति क्या होती है। शिक्षक जब हम बनते हैं तो कौन सी पद्धति, तो हम हमेशा हमारे एक टीचर को याद रखते हैं जो बेस्ट पढ़ाते थे, या एक टीचर हो या 2-3 टीचर हो, जो जितने भी टीचर हो उनकी जो चीजें थी वो हम उसकी मिमिक्री करते हैं या उसको कॉपी करते हैं अपने हिसाब से, और जितना हो सके अपने हिसाब से बेहतर बनाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन रोल मॉडल जो होता है वो हमेशा कोई टीचर होता है। अब जब हमारे टीचर्स ही फेस टू फेस टीचिंग के माहिर थे, ऑनलाइन के नहीं थे, और इवन इन फेस टू फेस मोड में टेक्नोलॉजी ब्लेंड करना या फ्लिप्ड करना क्लासरूम को, उसमें भी वो जब माहिर नहीं थे तो और भी दिक्कतें आने वाली है। वो भी बहुत बार हम समझ नहीं पाए थे कि हम अब नए तरीके से कहां से सीखेंगे, कौन होंगे हमारे नए रोल मॉडल्स, किसकी टीचिंग पद्धति हम सीखे, कैसे सीखे, कहां से सीखे। ये भी काफी एक चैलेंजिंग टास्क रहा, जिसकी वजह से भी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ज्यादातर निष्फल भी वहां पर हुआ। हम हमारे सर्वे की ओर देखें, जो मैंने सर्वे फॉर्म आपको भेजा था, लेट मी शेयर स्क्रीन, तो हम उस हिसाब से कुछ बातें करें कि क्या निकल के आता है हमारे यहाँ पे। Okay, I'm sharing a screen. Okay. हाँ, 2 फॉर्म्स हमने शेयर किए थे ना। एक ये नेटवर्क टीचर वाला एक फॉर्म था। या जिग्नेश भाई, शेयरिंग में कुछ दिक्कत हो या आवाज में तो मुझे बताते रहिएगा। नहीं हो रहा है शेयर सर। हाँ, ओके। तो दिस वाज एक था कि द नेटवर्क टीचर का सर्वे फॉर्म दिया था, जहां एक तस्वीर थी ऑनलाइन पर्सनल टीचिंग नेटवर्क की, जहां ये काफी पुरानी तस्वीर, 10-12 साल पुरानी बात है ये, जब हम डिजिटल पेडागोजीज की बात करते थे, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग या टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लेंड करना या फ्लिप करना, तब बात थी। वो ऑनलाइन टीचिंग या एआई इंटीग्रेशन की बात नहीं थी उस दौर में, तब की ये बात है। तो वहां ये पर्सनल ऑनलाइन नेटवर्क और उसके कुछ प्रश्न थे। तो हमारे सर्वे 110 पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है, वो काफी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये वर्कशॉप काफी सफल होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है लोगों से। जब कम रिस्पॉन्स मिलता है तब वही एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है ये कहने के लिए कि देखो अभी हम हमारे ऑनलाइन रिस्पॉन्सेज में कितने कमजोर है। जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे पाए हैं उनके लिए ये बात है कि ऐसा क्या होता है कि हम व्हाट्सएप में या ईमेल में कुछ થઈ ગયા છે. I think, sir, out of the local disconnected, I think. Yes.
Sir, your mic is unmuted. Please unmuted your mic. Yeah, thank you. I have unmuted the mic also. तो ये पहला प्रश्न रहता है, जो ज्यादातर हमारी अब आदतें जो है वो बदलने भी लगी है और अब हम डिजिटल रिस्पॉन्स करने भी लगे हैं। ये एक आदत बड़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे हम इस आदत को ओवरकम कर रहे हैं और डिजिटल कम्युनिकेशंस कर लेते। खास करके व्हाट्सएप से जब बातें करनी हो तो हमारे लिए बहुत आसान रहता है। महत्व के प्रश्न की ओर जल्दी में बढ़ूं तो हम ये देखते हैं कि हमें 66 रिस्पॉन्सेस 110 में से 66 रिस्पॉन्सेस यहाँ पर आए, जहां से 22 लोगों ने कहा कि क्या वो यूट्यूब के वीडियो क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, वेबिनार्स वगैरह लेते हैं या नहीं, इसकी बात वहां पर की गई थी। और कुछ लोगों को हमने उसके लिंक्स भी मांगी थी, वो भी कुछ हमें यहाँ पर मिली है। इन्फोग्राफिक्स की बात है, ऑनलाइन शेयरिंग की बात, तो मैक्सिमम 24 हमें मिलता है, वो है लेसन एंड करिकुलम शेयरिंग की बात जहां पर है, वहां पर इतना रिस्पॉन्स है। लेकिन याद रखिए 111 रिस्पॉन्स हमें अब तक मिले, उसमें से 45 के रिस्पॉन्स यहां पर आए हैं। तो अगर सोचे कि 200 या 250 लोग इस प्रोग्राम में अगर जुड़े हैं, शायद कल जो सर्वे के रिजल्ट जिग्नेश भाई ने मुझे भेजे थे, इसमें मैं देख लूं तो 255 थे। तो हम कह सकते हैं 20% रिस्पॉन्स आ रहा है, 20% यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। फिर हम आखिरी प्रश्न की ओर हम जाते हैं और देखें नीचे कि एक सीधा प्रश्न था, आपके पास ब्लॉग है या नहीं है। 23% के पास ब्लॉग है, 76 के पास नहीं है। लेकिन 23 भी मैं तो ये कहूंगा मेरे अनुभव से कि काफी अच्छा नंबर है। ये नंबर भी बुरा नंबर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हार्डली 5-10% के अंदर ही ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं जब हम टीचर्स के साथ वार्तालाप करें और ऐसे सर्वे फॉर्म भराए तब। फिर कुछ लिंक भी हमें मिली है, कुछ लोगों ने अपने अपने लिंक्स भी दी है, कुछ लोगों ने उसमें इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है। हम ब्लॉग की यहाँ बात, लेकिन इंस्टाग्राम की लिंक भी हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि वेबसाइट की बात करें तो परसेंटेज काफी कम, 10% से कम हो जाता है यहाँ पर। और तीसरा प्रश्न था हमारा यूट्यूब का था, तो यूट्यूब में भी देखिए 23-24%, तो रिजनेबली गुड नंबर हमें मिल रहे। तो ये जो 3 चीजें हैं, ब्लॉग, वेबसाइट और यूट्यूब की चैनल की हम बात करें तो ये प्रश्न क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक डिजिटल पेडागोजी की बात जब करें, मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, दिखाई दे रही है डिजिटल पेडागोजी लिखी हुई स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो डिजिटल पेडागोजी की जब हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमें इस डिजिटल पेडागोजी में जरूरी रूप से क्या चाहिए। अभी अगर इसकी कमी रहेगी तो एआई को इंटीग्रेट करके जब हम बात करेंगे तब कहीं ना कहीं फिर से फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कोरोना के समय फेलियर ज्यादा हुआ, सक्सेस रेट बहुत कम हुआ, स्टूडेंट्स भी काफी लेजी हो गए, टीचर्स भी काफी लेजी हो गए। तो कहीं उस गलती से हम सीखे, तो जब हम एआई की ओर जा रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे काफी स्ट्रेस दिया गया है, तो गवर्नमेंट के लेवल से भी काफी कुछ आएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वजह से। तो हम एक पिरामिड देखें तो सबसे बॉटम में CMS LMS हम देखते हैं यहाँ पर, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम उसको कह सकते हैं। जो अगर हम सीधे रूप से देखें तो हमारी ब्लॉग या वेबसाइट अगर है, और इवन यूट्यूब जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वो जो है ना नींव का पत्थर है, वो फाउंडेशन स्टोन है। इसलिए अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट या ब्लॉग जहां से हम कंटेंट शेयर कर पाए, या हमारी यूट्यूब की चैनल जहां वीडियो रिसोर्सेज हम अपने अपलोड कर पाए, वो नहीं होंगे तो एक अलग प्रकार की दिक्कत है कि हमारा नींव का पत्थर ही कमजोर है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर।
और एक बात की आपकी हर टीचर की, जैसे टीचर ट्रेनर से बीएड के स्टूडेंट्स अगर है और आप भविष्य में टीचर्स होने वाले हैं, तो आप तो अभी से देखिए, आज से ही कि आप अपना ब्लॉग शुरू कर दे, अपनी वेबसाइट शुरू कर दे, अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, और एकेडमिकली आप जो काम करते हैं, जो एकेडमिक काम आपका है, वो वहां अपलोड करना शुरू कर दीजिए। वेबसाइट बनाना या ब्लॉग बनाना, वो मैं कहता हूं कि पावर पॉइंट बनाने से भी आसान है। पावर पॉइंट बनाना भी अभी कठिन है, लेकिन उससे भी कम 3 स्टेप्स में आप अपने ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। यूट्यूब को हमें सबको पता है कि जब हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और सीधा अपलोड वीडियो को करें हमारे अकाउंट में, तो यूट्यूब चैनल तो यूं ही बन जाती है। लेकिन ये शुरू कर देना जरूरी है। अगर आज भी जो सीनियर टीचर्स भी है, आपके पास अगर आपका खुद का ब्लॉग, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल नहीं है, तो इट इज नाउ राइट टाइम। सही समय तो गुजर चुका है, लेकिन जो भी समय हो वो राइट टाइम है। आज से ही हम उसको शुरू कर सकते हैं। और ये आपके पास, आप शायद आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हमारे पास तो स्कूल की वेबसाइट है, स्कूल का ब्लॉग है, तो फिर ये क्यों करें? मैं ये आग्रह रखूंगा कि स्कूल की वेबसाइट या ब्लॉग हो तो सही बात है, स्कूल कॉलेज की, लेकिन आप अपनी भी खुद की एक जगह बना के रखिए। अगर एक प्रश्न ये भी होता है बहुत बार कि जब टीचर्स स्कूल बदलते हैं, ट्रांसफर होती है, बदलते हैं, तब वो कंटेंट फिर स्कूल के पास रह जाता है, आपके पास, आपके साथ कुछ नहीं आता है। इसलिए आप अपने कुछ हो तो आप जहां जाओ वहां आप ले जा सकते हो। दूसरी बात कि स्कूल कॉलेज की बहुत बार जो इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स होती है, वो बाहर से कोई अपडेट्स करते हैं, कोई एजेंसी को दिया है काम, या कोई एक इंसान काम करता है, तो आपको हर बार ये आपका कंटेंट उसको देना पड़ेगा। और जब वो कंटेंट अपलोड करेगा, छुट्टी का दिन है तो वो काम नहीं करेंगे, वो बीमार है तो काम नहीं करेंगे, वो बाहर गए हैं तो काम नहीं करेंगे, तो आपका कंटेंट आपको उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। हमारा एक आइडिया डिजिटल के स्पेस में ये है कि हम आत्मनिर्भर भी बने, सेल्फ रिलायंट बने। हर टीचर अपने अपने हिसाब से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहिए, उसमें वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी भी क्लासरूम में आप पढ़ाते हैं और वहां से सीधा आपको लाइव स्ट्रीम करना है या क्लासरूम रिकॉर्ड करना है, तो आप खुद पूरा सेटअप कर पाए, उस प्रकार की स्किल्स आवश्यक हो जाती है हर टीचर्स के लिए, कि वो अपने क्लासरूम में जब भी उनको वीडियो रिकॉर्ड करना है क्लासरूम में, या लाइव स्ट्रीम करना है क्लासरूम से डायरेक्टली, तो उनको किसी भी तरह से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। मैं बहुत बार ये कहता हूं कि जैसे हम क्लासरूम में आज जाते हैं, तो दरवाजा खोलना या बंद करना हो तो वहां पर कोई दरवान खड़ा नहीं रहता। खोलने की जरूरत हो, आजकल बहुत सारे एयर कंडीशन क्लासरूम होते हैं तो उनके दरवाजे बंद रहते हैं, ग्लास के डोर रहते हैं, तो हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि मुझे दरवाजा खोलना बंद करना नहीं आता है, मैं तो पढ़ाने वाला हूं, कोई दरवाजा खोल दे तो मैं अंदर जाऊंगा। अंदर जाते ही अगर लाइट की जरूरत पड़ी या पंखे की जरूरत पड़ी या एसी की जरूरत पड़ी, या आपके पास डिजिटल बोर्ड है उसको चालू करने की जरूरत पड़ी, या कहिए कि वहां चौक और डस्टर है, क्लासरूम में बोर्ड को आपको साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ लिखने की जरूरत पड़ी, तो वो चीजें हमें पता है कि हमें ही करना है, वी हैव टू डू। पंखा चालू करना है तो हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चौक का इस्तेमाल, डस्टर का इस्तेमाल। ठीक उसी तरीके से कैमरा का इस्तेमाल क्लासरूम में करना है, लाइव स्ट्रीम करना है, वो स्किल उतनी आसान वो स्किल हो जानी चाहिए, इतना नेचुरल तरीके से वो सब चीजें हमारे अंदर आ जानी चाहिए, तब जाके हमारा आउटपुट है वो अलग होगा और एक फर्क पड़ेगा। तो ये CMS LMS, जब हम देखें गूगल क्लासरूम का उदाहरण है, तो वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर स्टूडेंट्स की लर्निंग भी मैनेज होती है। जो लोग गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट की जो सुविधाएं है क्लासरूम की तरह स्टूडेंट्स के प्रोग्रेशन को देखने की, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि
गूगल क्लासरूम या ऐसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो मूडल भी है या माइक्रोसॉफ्ट की भी है, इसका इस्तेमाल सिर्फ कंटेंट शेयरिंग के लिए होता है कि टीचर्स ने अपना कंटेंट दे दिया, स्टूडेंट्स ने वहां से पीडीएफ या वर्ड फाइल या पीपीटी या छोटा मोटा वीडियो वहां से देख लिया, सिर्फ वो होता है। दरअसल होना क्या चाहिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स हर एक स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेशन है वो वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए उस हिसाब से, और टीचर को हर बार ये पता रहे कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, वो सब वो देखते भी रहे उस हिसाब से। इसके अंदर मैं एक उदाहरण दिखाऊं गूगल क्लासरूम का, तो इस गूगल क्लासरूम में हम देखिए हमारा एक सेमेस्टर 2 का ये क्लास है, तो वहां ग्रेड्स, ये जो ग्रेड्स लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीचर को एक ग्रेड बुक वहां पर मिलती है, और जब हम इस ग्रेड बुक में देखें तो वी विल सी कि स्टूडेंट्स के परसेंटेज के साथ, जैसे हम यहाँ पर एक देखिए आकाश चावड़ा तो 90% है, अक्षय तो 86% उसका परफॉर्मेंस है। ये लाइव अपडेट होता है, जितने भी टास्क टीचर्स ने दिए हैं उस टास्क में वो कैसे काम कर रहे हैं, कहां पर काम किया है, कहां नहीं किया है। अब देखिए कि आपको मिसिंग दिखाई देगा कहीं पर, तो ये इन स्टूडेंट्स ने अपना काम समय पे नहीं किया है। किसका काम बाकी है, कौन स्टूडेंट है जो काफी लेथार्जिक है, लेजी है, तो टीचर उन पर कैसे काम कर पाए कि ये स्टूडेंट जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ और मोटिवेशन की जरूरत है, उनको कुछ और याद दिलाना होगा कि क्या तकलीफ है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, दूसरे स्टूडेंट्स अगर काम कर पा रहे हैं तो आप क्यों पीछे रह जाते हो। ये सब एक मैनेजमेंट टूल हमें दिखाएगा लर्निंग मैनेजमेंट टूल के हिसाब से। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम कह सकते हैं कि हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक कम्युनिकेशन लिंक्स अगर हम बनाए तो उस हिसाब से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ईमेल ग्रुप का करें तो फिर भी बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। अगर आपका गोल जो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो काफी फार फेच्ड है और आप चाहते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल जब तक स्टूडेंट्स आपके पास रहे उनकी हर एक प्रवृत्ति डिजिटली रिकॉर्ड हो, आर्काइव हो, तो ईमेल ग्रुप्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। और आजकल गूगल ग्रुप का है या माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल ग्रुप आप बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस टीचिंग इसके महत्व के पहलू है, मैं अभी उसमें अंदर नहीं जा रहा हूं, अगर कोई प्रश्न होंगे तो हम उसकी बात करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट की जब बात हम करें तो डिजिटल पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण अंग इसमें उभर के आता है। और जब हम डिजिटल पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं और कैसे इस चीज को हम देखें, ये लेट मी शो वेबसाइट, एक हमारे स्टूडेंट्स की जो वेबसाइट है। मुझे पता है कि जिग्नेश भाई ने भी काफी अच्छा कंटेंट डिजिटल पोर्टफोलियो पे बनाया है। हम साथ में एक अच्छा वीडियो भी शूट करना चाहते हैं, 1-2 साल से वो काम पेंडिंग ही रहा है, हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन डिजिटल पोर्टफोलियो के बारे में भी उनको अच्छा पता है। ये जो है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स के डिजिटल पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट हमने यहाँ पर बनाई है। तो स्टूडेंट्स के नाम पर क्लिक करते ही आप अलग अलग स्टूडेंट्स के डिजिटल पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं और वहां से आप उनके बारे में देख भी सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने क्या काम किया था। तो जैसे जब उनकी पढ़ाई एमए के दौरान वो करते हैं तो जो काम भी वो करते हैं, जो भी जैसे उन लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए हो या कोई असाइनमेंट्स बनाया हो, एवरीथिंग इज डिजिटली आर्काइव्ड। वो एक आर्काइवल में रहती है और वहां से वो स्टूडेंट्स अपने खुद की वेबसाइट पे वो अपलोड करते हैं। तो जैसे उनके प्रेजेंटेशंस के वीडियो हुए या उनके प्रेजेंटेशन ब्लॉग हुए, पीपीटी स्लाइड्स हुई या और कुछ भी देखा, तो जो कुछ भी काम हो रहा है वो सब काम एक तरीके से
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट के साथ रहे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ये कहा जा सकता है कि जब टीचर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वो साइकिल जो है पूरी, वो आधी साइकिल संपूर्ण हुई है। बाकी की आधी साइकिल है जब स्टूडेंट्स उसका इस्तेमाल करें तब। हाउ स्टूडेंट्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, टीचर्स कितना यूज करते हैं और बाकी का काम स्टूडेंट्स उसी हिसाब से कैसे करते हैं। जब स्टूडेंट्स भी अपना आउटपुट टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे तब वो एक साइकिल संपूर्ण होती है। अब जब कोई भी टास्क हमारा हो क्लासरूम का, वो हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है, जैसे क्राफ्ट का काम है, चार्ट्स बनाए हैं, नोटिस बोर्ड के लिए कुछ काम किया है, कोई मॉडल्स बनाए हैं, वो फिजिकल मॉडल्स है। जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि सब डिजिटल काम ही होना चाहिए। डिजिटल एक है, फिजिकल काम भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड जो है उसके साथ भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के साथ काम करना, चीजों के साथ काम करना, चीजों को रियली हाथ में लेकर कुछ बनाना, ये भी जरूरी है। लेकिन जो चीज हम फिजिकली भी हाथ से बनाते हैं, उनको भी डिजिटली कैसे रिकॉर्ड करें या उनको भी डिजिटली हम कैसे डॉक्यूमेंट कर पाए, ये भी एक तरीका है। तो जब भी एक ग्रुप काम करता है फिजिकली कुछ चीजों के साथ, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तो उस हर एक टीम में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कैमरा के साथ खड़ा है। वो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो छोटे लेते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उनका पूरा एक वीडियो हम बना पाए कि देखो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में हमने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर पहले ये बनाया, फिर वो बनाया, और अब ये हमारा फिनिश प्रोजेक्ट है। तो ये जो फिर छोटा सा वीडियो बनेगा या फोटोग्राफ्स के बाद डॉक्यूमेंट होगा, वो हमारे डिजिटल पोर्टफोलियो पे भी रहेगा। फिजिकल चीजें बनानी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन दिक्कत एक ये रहती है कि जब स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट छोड़ के जाते हैं तो वो सब फिजिकल चीजें ले नहीं जा पाते हैं या उनकी शेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर स्कूल कॉलेजेस के लिए भी वो सब कूड़ेदान में ही दान कर देना पड़ता है सब। फिर स्वच्छता अभियान आता है 2-3 साल के बाद, या दिवाली में जब स्वच्छता अभियान आता है तो सब कुछ कूड़ेदान में, बस्ती के भंडार में सब काम वो चला जाता है। वो चीज अगर डिजिटल माध्यम से रहेगी तो 10 साल 20 साल जब तक वो वेबसाइट्स रहेगी, जब तक हम अपडेट करेंगे, तब तक हम वो चीजें दिखा पाएंगे लोगों को, वो हम शेयर भी कर पाएंगे। अपडेट्स इसके अंदर भी काफी महत्वपूर्ण चीज है। अगर अपडेट्स न रहे स्टूडेंट्स या टीचर, तो फिर वो चीजें धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती है। जब डिजिटल पोर्टफोलियो की हमने शुरुआत की तो हमने 2010-12 के साल में इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए इस चीज को भी 10-12 से 14 साल हो चुके हैं डिजिटल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के, लेकिन आज भी उन दिनों में जो स्टूडेंट्स ने वो पुरानी वाली वेबसाइट बनाई थी, उनकी तस्वीरें वो सब है। इनमें से बहुत सारे लोग अब करीबन 8-10 साल से टीचर भी बन चुके, इतना अनुभव भी उनके पास हो गया है। तो वो लोग अपना काम अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं कि देखो जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसे काम करते थे, ऐसे वेबसाइट्स बनाते थे, हम ऐसे प्रेजेंटेशंस बनाते थे, ये काम हमने वहां पर किया था, जो काम भी किया वो सब वो वहां पर लगा सकते हैं। इन ग्रुप में अर्ली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने उन दिनों काफी अर्ली डेज ऑफ ई कंटेंट बनाना जब था, तब भी उन लोगों ने एक ऐसे छोटा सा वीडियो लर्निंग थ्रू वीडियो रिसोर्स के माध्यम से बनाया था। तब वीडियो कंटेंट बनाना बहुत नया था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास आज जितने रिसोर्स है उतने रिसोर्स भी नहीं थे। तो तब भी स्टूडेंट्स ने मिलके ये जो काम किया था, कुछ एक मुद्दा सिखाना है, ब्रेकिंग द आइस करके, तो उसका एक लेसन प्लान बनाते हैं। वीडियो में पहली एक स्लाइड उस तरह से आती है कि इस लेसन से आप क्या सीखोगे। वीडियो बनाने का मतलब तो ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस। और फिर उन लोगों ने वीडियो शूट करके एक नाट्यात्मक रूप से एक लेसन प्लान बनाया था। 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की ये बात है।
वीडियो क्वालिटी से भी हमें पता चले कि ये कितना कमजोर होगा। लेकिन आज भी इन स्टूडेंट्स का काम एक जगह पर डॉक्यूमेंटेड है, जगह पर डॉक्यूमेंट। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब हम डिजिटल यूज करना चाहे तो डिजिटल थिंग्स हमें आर्काइवल की सुविधा जो देती है वो काम रखे, सब कुछ नष्ट न कर दे, सब कुछ लोग भूल न जाए, लेकिन कहीं पर उसका आर्काइवल डॉक्यूमेंट करके रखे और 10-12 साल के बाद भी, जैसे हम देख सकते हैं कि आज अभी भी वो चीजें हैं जो हम लोगों को दिखाते रहते हैं और सबके लिए मोटिवेशन रहता है। नए स्टूडेंट्स के लिए भी काफी मोटिवेटिंग है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग रहता है। तो ये एक डिजिटल पेडागोजी है कि महत्वपूर्ण बात है कि पहले ये हम सक्षम कर ले, बाद में हम एआई इंटीग्रेशन की ओर जाते हैं। हमारा दूसरा जो सर्वे था दैट वाज अबाउट एआई के बारे में है, हमने एक सर्वे लिया था। किसी का माइक शायद चालू है। સર હું સ્પીચ રોલ આપું છું, તમને એવું લાગે सर प्लीज अनम्यूट करना आप। सर अनम्यूट Your mic is unmuted. Yes, you are. Okay, I have unmuted. Yeah, I am sharing the survey. दूसरा जो हमारा सर्वे था उसको देखते हैं। हाँ, तो ये सेकंड सर्वे जो हमारा था पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज फॉर एआई इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो शायद आज पूरे दिन काम लग सकता है कि हम क्या, जो ग्रुप है आज का वो क्या सोचता है इसके बारे में। तो हमने ये प्रश्न पूछा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव एआई जो है उस कॉन्टेक्स्ट में हायर एजुकेशन में हाउ फेमिलियर पीपल आर। तो मॉडरेटली ज्यादातर लोग दिखाते हैं, मॉडरेटली दे आर दे। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि वो काफी अवेयर है इसके बारे में, यहाँ पर है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस बहुत, मतलब उनका फेमिलियरिटी बहुत कमजोर है इसके बारे में अभी भी। कंफर्टेबल इन टेक्नोलॉजी यूज में काफी लोग कहते हैं कि वो कंफर्टेबल है इन द यूज ऑफ, वो अच्छी निशानी है। वो शायद इसलिए भी है कि शायद हमारे पास देखे ये भी देख ले कि जो एज ग्रुप है यहाँ पर वो भी काफी यंग एज ग्रुप है, 21-25 इयर्स के 44% से भी ज्यादा लोग अभी इसके साथ जुड़े हैं। और 10-26 से 30 देख ले तो मोर देन 54% आर वेरी यंग पीपल इन द ग्रुप। तो इस वजह से ये कंफर्ट जोन रहता है। यंगर द पीपल आर, दे आर मोर फ्रेंडली विथ टेक्नोलॉजी। ओल्डर द पीपल आर, दे आर लेस फ्रेंडली विथ टेक्नोलॉजी। और इसमें ये एक दिमाग वाली बात है और कुछ नहीं है। दिमाग जो हमारा है, जिस तरीके से वो कंडीशन होता है, जिस तरीके से हमारा दिमाग प्रोग्राम होता है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता है। मेरी एक स्लाइड में इसी चीज के लिए मार्क प्रेंस्की का एक रेफरेंस देकर रखा है कि मार्क प्रेंस्की जो इसके बारे में कहते थे यही बात कि डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल नेटिव्स की जो बात है, आजकल काफी जानी पहचानी ये बात है कि जो इमिग्रेंट्स है, मतलब जो पिछली सदी में तैयार हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, माइंड, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड जो 20वीं सदी में हुआ, जो बिना टेक्नोलॉजी के हुआ, बिना स्क्रीन के हुआ, उनके लिए। और अब नए लोग जो है 21वीं सदी के जो लोग हैं, जो अभी भी स्कूल में है, धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, तो वो लोग डिजिटल नेटिव्स है क्योंकि वो स्क्रीन के साथ बड़े हो रहे हैं। बहुत सारी स्क्रीन से वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की प्राप्ति कर रहे हैं। आप जानते हैं जो भी रूपल बेन है, जो भी हमारे इस
70s, 80s, 90s में तैयार हुए। हम जानते हैं कि हमारे दौर में एक भी स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल स्क्रीन नहीं थी। टेलीविजन भी 84, 85 में थोड़े थोड़ा धीरे धीरे आने शुरू हुए। मिडिल क्लास लोगों के बाद तो 90 के दशक में टेलीविजन आए। तो मुझे याद है कि जब मैं 12-14 साल का था तब पहली बार टेलीविजन हमारे घर में आया, और दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग समथिंग थ्रू स्क्रीन, स्क्रीन के माध्यम से कुछ सीखना। लेकिन तब तक तो आप 12-14 साल के हो चुके थे, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ माइंड तो हो चुका था ऑलरेडी उस समय में। और वो फॉर्मेशन तो यही कहता था कि अगर सीखना है तो किताब से ही सीखना होगा, पढ़ना ही होगा, लिखना ही होगा, हाथ से लिखना होगा। जब हम हाथ से लिखेंगे तो उनके स्पर्श से हमारे दिमाग के ज्ञान तंतुओं में एक अलग असर होती है, और राइटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। उस हिसाब से तो आज भी राइटिंग की आदत रहती है, कहीं से किसी तौर पे हम अभी भी लिखते हैं, या जब तक हम पढ़े नहीं प्रिंट तब तक हमें कुछ चीजें बराबर समझ में नहीं आती है। तो ये आदत है दिमाग की, जिसके साथ बहुत लड़ना पड़ा निकलने के लिए। लेकिन वो जो स्क्रीन था वो भी एक दूरदर्शन ही था जो 3-4 घंटे ही दिन में चलता था। इसके कंपेयर टू दैट सो मेनी चैनल्स आ गए, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स 24 आवर्स चलते रहते हैं। आज तो टीवी का युग भी अस्त हो चुका है, टीवी भी अब महत्वपूर्ण नहीं है, लोग टीवी भी नहीं देखते अब तो। अब मोबाइल में सब आ गया है, हर किसी के पास अपना टीवी अपने पॉकेट में रहता है, और सबके पास अपनी पर्सनल स्क्रीन है, और उस स्क्रीन से ही अब करीबन सब कुछ होता है। सब कुछ, मेरा प्लानिंग, मेरा अलार्म क्लॉक, सुबह जो उठना है मुझे वो, फिर पूरे दिन क्या करना है उसका शेड्यूल अगर हो, कैलेंडर हो वहां पर, कैसे करना, क्या करना, कहाँ जाना, तो व्हाट्सएप मुझे ड्राइव करता है कि आज ये है वो है। कोई पूछता है, किसको जवाब देना है, तो ज्यादातर अब व्हाट्सएप से या ईमेल से ही होता है। तो वो जो स्क्रीन है दैट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम वहां तक कह सकते हैं आज इवन इमिग्रेंट्स के लिए भी कि हमारा मोबाइल फोन, हमारी टेक्नोलॉजी वो हमारा शरीर का अभिन्न अंग बन चुका है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए तो अब हम नहीं कह सकते कि आप किसी को आपका मोबाइल दे सकते हो काम करने का, क्योंकि हम नहीं कहते आज मुझे काम नहीं है आप ले जाओ। वो बिल्कुल कैसा है जैसे हम ये कहे कि आज मुझे एक हाथ की जरूरत नहीं है, आप मेरा एक हाथ लेके जाओ। आज मुझे बैठ के काम करना है, आप मेरा पैर लेके जा सकते हो। या कोई ये भी कहे कि भाई मुझे दिमाग की भी जरूरत नहीं है, आप मेरा दिमाग भी लेकर जा सकते हो। तो ऐसे जैसे हम शरीर के अंग किसी को नहीं दे सकते, जैसे उसी तरह टेक्नोलॉजी, हमारा लैपटॉप या मोबाइल, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अवर बॉडी, अवर माइंड, अवर आईज, हमारी आंखें है वो, हमारा दिमाग है वो। तो अब वो हमारे कान है वो, वी कांट गिव, वी कांट शेयर दोज थिंग्स ऑल्सो। तो उस तरीके से हम ये देखें कि डिजिटल नेटिव्स इस स्क्रीन के युग में जो है वो मल्टीटास्कर्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, मल्टीटास्किंग बनते जाएंगे, पैरेलल थिंकिंग उसके लिए बहुत आसान होती जाएगी, मल्टीमीडिया से वो ज्ञान लेंगे अपने पास, मल्टी रिसोर्सेज होंगे, किताब से ही वो नहीं सीखेंगे। ये बात काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए भी। तो ये जब हम देखें कि कंफर्ट जोन ज्यादा है तो younger the people will be there, they will be more comfortable in using technology and integration also. एक प्रश्न था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आपने प्रीवियसली कहीं पर किया था या नहीं, तो शायद नो ही होगा, बहुत कम जगह पर, क्योंकि अभी नया नया है, 1-1.5 साल ही हुआ है जनरेटिव एआई को। नवंबर 22 में ओपन एआई ने लॉन्च किया, और काफी आश्चर्यजनक लगा सबके लिए कि क्या इस तरह से भाषा के साथ मशीन काम कर सकता है। काफी शॉकिंग था वो हम सबके लिए, लेकिन कर सकता है, ये हकीकत है। बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस जनरेटिव एआई इज वर्किंग विथ लैंग्वेज एंड ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑल्सो, जो आप पूरे दिन के वर्कशॉप में आप वो सब देखेंगे भी। तो ये एक है कि धीरे धीरे ये ब्लू कलर का जो है वो बढ़ेगा और संपूर्ण रूप से वो 1-2 साल में ही हो जाएगा।
फिर एक प्रश्न था कि आपका ओपिनियन, पोटेंशियल बेनिफिट्स डू यू फोरसी, कैसे बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। तो ये भी अच्छा लगा कि अब देखो, क्रिएटिव राइटिंग, एनहांस्ड क्रिएटिविटी इन राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग में भी 50% ने वहां पर भी वोट किया है। 112 रिस्पॉन्सेज हमें यहाँ मिले हैं, वहां पर 50% ने ये कहा है कि हाँ, ये राइटिंग में भी और क्रिएटिव राइटिंग में भी काफी मदद कर सकता है। जो 50% अभी जो है, जो ये अभी उसमें डाउट है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे कहिए कि काव्य सर्जन कर दे या माइक्रो फिक्शन, लघु कथा कर दे, या डायलॉग्स लिख दे। आप नाटक लिखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक छोटा सा 10 मिनट का नाटक लिखना है आपको, और आपके पास कोई सिचुएशन है और लेकिन डायलॉग नहीं है अभी आपके पास, या लिखना है और आपको कुछ आइडियाज चाहिए, तो आप मदद लीजिए जनरेटिव एआई की, आपको वो डायलॉग्स भी लिख कर देंगे। हो सकता है गुजराती में अभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन हिंदी में भी काफी अच्छा काम होने लगा है, हिंदी भाषा में भी। इंग्लिश में तो बेहतरीन तरीके से डायलॉग बन के आते हैं। हमने क्लासरूम में बहुत बार ये ट्राई किया, जो भी नाटक हम पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि अब आप जनरेटिव एआई को पूछो कि इसी प्रकार के डायलॉग आपको एक अलग सिचुएशन में लिख दे। तो हमने लास्ट टाइम एक एब्सर्ड नाटक है, वेटिंग फॉर गोडोट, वो अभी हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पर भी स्टूडेंट्स ने ट्राई की और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डायलॉग्स वो लिख कर देते, और उस पर हम एक स्क्रिप्ट बनाकर यूथ फेस्टिवल हो या कोई नाटक करना है हमारे कल्चरल इवेंट्स में, तो हम ये कर सकते हैं। अब वो शक्य है। आप ये भी जानते होंगे कि हॉलीवुड में राइटर्स ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कम हो, इस हिसाब से वहां पर भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी। तो हम ये देख सकते हैं कि हॉलीवुड, अमेरिका जैसी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वहां के राइटर्स भी चिंतित थे कि सब लोग अगर जनरेटिव एआई से स्क्रिप्ट लिखने लगेंगे तो हम जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये काफी बड़ी चैलेंज है। तो ये हो सकता है। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस 58% ने कहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जनरेटिव एआई की। अगर सबसे बेहतरीन कुछ मुझे लगता है पर्सनली, तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस की बात है। आई विल शेयर सम ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो जो हमने प्रयोग किए हमारे यहाँ पर, और काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमें मिले। हमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य की बात में तो वी आर लाइक कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। बाकी के विषय के जो टीचर्स है, गणित के है, विज्ञान के है, वो लोग भी उसी हिसाब से अपना ट्राई करें और देखें कि क्या हो रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इनिशियल फेज में कि हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में ट्राई करके देखें, काफी मुश्किल है अभी समय, या बड़ी टीम चाहिए। ये बीएड कॉलेजेस में शक्य है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स वहां आए हैं, तो हर एक चीजों को, जो आप गणित कैसे पढ़ाना है, विज्ञान कैसे पढ़ाना है, अर्थशास्त्र कैसे पढ़ाना है, भाषा कैसे पढ़ानी, तो बहुत सारी वैविध्य है वहां पर। तो वहां के टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब जान सकते हो कि अलग अलग शिक्षक की शैक्षणिक पद्धतियां जो है उसमें एआई मदद करता है या नहीं, कहां तक कर सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती है, और उनके रास्ते क्या है, उनके आयाम भी क्या है। लेकिन पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इज समथिंग रियली यूजफुल टू बी सीन ऑल्सो। उस बात पे हम फिर से भी आएंगे। सब्जेक्ट कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, या टीचर्स के लिए वर्कशीट्स बनाने में काफी मदद मिलती है। अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं इतने सालों से 25-26 साल हो गए, 96 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 96 से लैंग्वेज पढ़ाई है मैंने, साहित्य भी पढ़ाया है। मैं वर्कशीट भी अपनी बनाता था ये सब बनाने के लिए। लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया है जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी या जेमिनी, तो वो मुझे काफी बेहतरीन आइडियाज दे रहे हैं। तो मेरा इस 20-25 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर भी मुझे ये लगता है कि
काफी कमी थी मेरी टीचिंग पद्धतियों में, मेरी वर्कशीट्स में। ये वो कमियां भरपाई हो रही है। वो इस कमियों के बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है। हम कह सकते हैं कि इजीली ब्लेम कर देना मशीन को कि नहीं, मशीन मानव की तरह काम नहीं कर सकता है। पर मैं पर्सनली ये मानता हूं कि नहीं, मानव को कुछ सहायता की जरूरत रहती है, एक असिस्टेंट की जरूरत है, और वो ऐसा असिस्टेंट हो तो जो आपको बराबर समझ पाए, आपको जो चाहिए वो दे। उस प्रकार के जिंदा इंसान या असिस्टेंट को रखना भी बहुत मुश्किल है। तो वहां पर मुझे ये मिला कि दिस इज वेरी हेल्पफुल, एंड काफी समय इससे हमारा बच रहा है आजकल काम में, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हो रही है। क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए बहुत समय मिल रहा है, स्टूडेंट्स को हम ज्यादा स्पेस दे पा रहे हैं अपना काम करने के लिए भी। तो ये परसेंटेज इंक्रीज हुए। स्टूडेंट्स को कितनी जगह मिल रही है आपके क्लास में, डिस्कशन का अवकाश कैसे बढ़ गया है, आप कैसे कम समय में क्लासरूम की प्लानिंग अब कर पा रहे हो। So these are very interesting advantages which I personally have experienced with this, and I hope आज के पूरे दिन जब आप काम करोगे तो आप भी धीरे धीरे महसूस करोगे कि नहीं, ये काफी चमत्कारिक चीज है। या एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है। कुछ और हमें मिले गणित विज्ञान ना प्रयोगो અને व्याकरण ना सिद्धांत also are very useful in that. आपकी एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट में भी हमें काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। और एक प्रश्न था कि चैलेंजेस यूसी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसी चैलेंजेस देख रहे हैं यहाँ पर। एक चैलेंजेस है लेक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ये काफी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये मैंने जितने भी एक साल में ऐसे सर्वे किए अलग अलग टीचर ग्रुप्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, तो इसी में ज्यादा पॉइंट थे। आज भी यहाँ ऑलमोस्ट 52% लोग ये कहते हैं कि लेक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो इस पर मैं एक बात आई वुड लाइक टू टेल कि लेक ऑफ ट्रेनिंग और जो सपोर्ट है उसको हम एड्रेस कैसे करते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना का समय आया और अचानक हमें ऑनलाइन जूम सीखना पड़ा, मीट सीखना पड़ा, MS टीम्स। इवन वी पीपल हु वर डूइंग यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सो मेनी इयर्स। जैसे मुझे 2008-9 में UGC से प्रोजेक्ट मिला था यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कब? 2008 की बात कर रहा हूं मैं। फिर 2010 में मुझे MHRD से एक प्रोजेक्ट मिला था कंटेंट डेवलप करने के लिए। ये अब लगे कि ये पिछली सदी की बात है या पिछले जन्म की बात है। समय इतनी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है कि 2008 या 10 में जो फंडिंग मिल रही थी कंटेंट के लिए या इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए, तब हम जो काम कर रहे थे उसमें भी जूम कहीं नहीं था, मीट कहीं नहीं था, मतलब ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल नहीं थी। इट वाज प्रिपेयरिंग अ कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। असिंक्रोनियस ही था, असिंक्रोनियस, सिंक्रोनियस कहीं नहीं था। वो अचानक नया आया कि ऑनलाइन पढ़ाओ, कोरोना लॉकडाउन है, यू स्टार्ट टीचिंग, डू वेबिनार। अब वेबिनार करो, तो सबको जल्दी से सीखना पड़ा। तो जब मैं देखूं कि मैंने कहां से सीखा, और जो लोग पिछले 10 साल से टेक्नोलॉजी में थे, लोग उनको पूछते थे कि अब ये कैसे करें, आप ट्रेनिंग दो, आप ये सेशन लो, ये बात करो, तो लेकिन आपको भी पता नहीं है कैसे करें। यू ऑल्सो डोंट नो कि ये क्या है और कैसे करें। सब नए टूल्स से मार्केट में जल्दी जल्दी चीजें आने लगी। इनिशियल सब फ्री भी था। तो कहां से सीखा, कैसे सीखा? क्या किताब से सीखा? नहीं, किताब से नहीं सीखा, क्योंकि अभी किताब नहीं बनी थी। जो एप्लीकेशंस बनी है अभी नई नई, उसके प्रयोग पे किताब बनने में तो देर लगेगी, और लॉकडाउन का समय है, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं चल रहे, कौन पब्लिश करेगा आपकी किताब? तो तब कहां से सीख रहे थे? यूट्यूब के वीडियो से सीख रहे थे, वेबसाइट से सीख रहे थे, FAQ से सीख रहे थे। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो लोग नई ऐप बनाते थे, नई वेबसाइट बनाते थे,
तो वो लोग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगाते हैं। और हमारी लर्निंग, मेरी खुद की लर्निंग कहां से हुई, तो FAQ से हुई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। छोटे मोटे वीडियो जो उन लोगों ने बनाने वालों ने या यूजर्स ने बनाए, बहुत सारे यंग यूजर्स जो है वो छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना डू इट योर सेल्फ, DIY हम कहते हैं, DIY डू इट योर सेल्फ, ये लोगों ने काम किया। तो अगर अब सोचिए कि मेरी आदत, लर्निंग की आदत ऐसी है कि मुझे किताब से ही सीखना अच्छा लगता है, मैं किताब दो मुझे तो ही नया सीखूंगा, तो क्या होगा, तो मैं आउट ऑफ डेट हो जाऊंगा, तो नई चीज में सीख नहीं पाऊंगा। तो उस अनुभव से लेते कि अब नए दौर में, इस सदी में जो कुछ भी नया आएगा वो अगर आपको सीखना है तो आपकी लर्निंग हैबिट जो है वो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। एक सेल्फ लर्निंग, आपको खुद से ही सीखना है, डू इट योरसेल्फ करना है। और दूसरी, आपको स्क्रीन से सीखना होगा, वेबसाइट से सीखना होगा, ब्लॉग से सीखना होगा, या यूट्यूब के वीडियो से सीखना होगा। अब ये प्रश्न आता है, क्या ऐसी लर्निंग हैबिट्स हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या नहीं? क्या इस प्रकार की लर्निंग की आदतें हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या नहीं? अगर आपके पास आपकी यूट्यूब की चैनल है, आपके वीडियो रिसोर्स है, तो आप वो वीडियो स्टूडेंट्स को देते होंगे, और वो वीडियो देखकर, सुनकर स्टूडेंट्स जब एक्टिविटीज करते हैं तो एक वो नई लर्निंग हैबिट भी सीख रहे हैं। और नई लर्निंग हैबिट है वीडियो से कैसे सीखा जाए, जो काफी महत्वपूर्ण है आज के दिनों में। किताब से सीखना जरूरी है, किताबें पढ़नी चाहिए, पुराने किताबें भी पढ़नी चाहिए, एक हिस्टोरिकल सेंस चाहिए, पास्ट की समझ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब को हम रिप्लेस कर दें, लेकिन नई चीजें, जब हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं तो नई चीजें सीखने के लिए नई आदतें चाहिए, और वो है वीडियो से सीखना। और अगर कोई टीचर आज छोटे मोटे वीडियो लेसन्स नहीं बनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो वीडियो से सीखने का मौका नहीं देते हैं, तो वो एक अन्याय कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के साथ। वो अन्याय कर रहे हैं कि उनको आप नहीं सिखा रहे हो कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, या जैसे हम सब, मैंने जब उदाहरण दिया कि 84-85 में पहला टेलीविजन आया, तो पहला मेरा स्क्रीन के साथ जो रूबरू होना था वो एंटरटेनमेंट के लिए था, और वो हमेशा रहेगा कि स्क्रीन मतलब एंटरटेनमेंट, स्क्रीन मतलब एजुकेशन बहुत मुश्किल से आएगा। स्क्रीन मतलब एजुकेशन हो सकता है, स्क्रीन से वो सीखने में बहुत, वो अनलर्निंग करना और रीलर्निंग करना बहुत मुश्किल है। वो इतना आसान नहीं है कि आप बच्चों को दे दो कि ये देखो वीडियो और चलो सीखना शुरू कर दो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। स्क्रीन मतलब एंटरटेनमेंट है, स्क्रीन मतलब बहुत सारे वो कहते हैं ना कि नोटिफिकेशन है, नोटी शब्द अंग्रेजी का जो है ना, तूफान करना नोटी। तो ये सब जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो हमें डाइवर्ट करते रहते हैं, तुरंत कहीं और डाइवर्ट। तो कैसे डाइवर्ट न हो नोटिफिकेशन से और वीडियो से सीखे, न सिर्फ छोटे वीडियो, बड़े वीडियो से भी। हमने एक पेडागोजिकल प्रैक्टिस अपनाई कि छोटे वीडियो बनाओ, क्योंकि बड़े वीडियो देखना मुश्किल है। सही बात है, स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत वाली बात है कि बड़े वीडियो देखना मुश्किल है। छोटे वीडियो, हमें पता है कि हमारे व्हाट्सएप के मैसेज में सी मोर लिखा है नीचे, सी मोर, तो भी हम नहीं देखते, वो मैसेज भी हम नहीं पढ़ते अगर छोटा लंबा मैसेज आ गया तो। लेकिन इन आदतों से भी हमें हमारे स्टूडेंट्स को निकालना होगा, उनको ये आदतें डालनी होगी। थोड़ा लंबा पढ़ो, थोड़े लंबे वीडियो भी देखो, लंबे वीडियो देखने की आदतें भी धीरे धीरे डालनी होगी। छोटे वीडियो से शुरू करके उनको लंबे वीडियो की ओर भी ले जाना होगा। हम हमारे PG स्टूडेंट्स के साथ जब बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आप आर्टिकल से सीखो, जर्नल के जो आर्टिकल्स है वहां से आपको सीखना चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स लंबे होते हैं तो इसके लिए पूरा कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। विकिपीडिया से आसान हो जाता है, स्पार्क नोट्स से आसान हो जाता है, स्टडी मटेरियल की वेबसाइट से आसानी से लोग सीख लेते। लेकिन एक जर्नल आर्टिकल दिया 15-20 पेज का, तो वो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। तो मतलब ऐसा ही होता है लंबे वीडियो के साथ भी। पर ये आदत कि जब हम ये कहते हैं कि लेक ऑफ ट्रेनिंग है, मुझे ट्रेनिंग दो, कोई आपको ट्रेनिंग क्यों दे, आप खुद क्यों ना सीख ले। आज आपके पॉकेट में एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल में सब कुछ है, सब भी। आप प्रश्न डालो कि आई वांट टू मेक अ वेबसाइट,
तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। डू इट योरसेल्फ, वेबसाइट बन गई। मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मैंने कहा कि ब्लॉग और वेबसाइट होनी चाहिए। और आप अगर मुझे पूछे कि आप सिखाओ, तो मैं कहूंगा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब आपको खुद सीखना चाहिए। आपको सिखाने वाला आपकी पॉकेट में पड़ता है। आप जब उस जीन को घिसो, थोड़ा उस जीन को जागृत करो, चिराग वो बाहर निकलेगा और आपको सिखाना शुरू कर देगा। सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई चीज में अब टीचर्स को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मुझे लेक ऑफ ट्रेनिंग है, कि मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे ट्रेनिंग नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं आता है। डिजिटल बोर्ड्स हमने जब लगवाए हमारे यूनिवर्सिटीज में, स्मार्ट बोर्ड्स लगवाए, फिर हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड बड़े अच्छे हैं, एंड्रॉइड भी है इसमें, विंडोज भी है इसके अंदर। स्मार्ट बोर्ड अगर लगाना है तो आप देखिए कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, विंडोज भी होनी चाहिए उसमें, एंड्रॉइड भी होनी चाहिए, तब आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट बोर्ड कर सकते हो। ये बात करने के बाद बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने वो खरीदा भी, रखा भी वहां पर। फिर जब मैं पूछता हूं कि अब क्या हो रहा है, इस्तेमाल कैसे करते हो, तो इस्तेमाल ज्यादातर अभी भी वो प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरह ही कर रहे हैं। प्रोजेक्टर की स्क्रीन अगर है उसी तरह वो डिस्प्ले के लिए ही करते हैं, और कुछ काम उसमें वो नहीं कर पाते। हम पूछते हैं कि क्यों, तो कि किसी ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने हमें ट्रेन नहीं किया कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आज के युग में जब सेल्फ लर्निंग इज द मंत्र, सेल्फ लर्निंग आज का बड़ा मंत्र है, तो हमें ये देखना है कि कोई टीचर ये फरियाद न करे कि लेक ऑफ ट्रेनिंग है, वो खुद से ट्रेनिंग ले, वो बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। लेट मी शेयर माय पीपीटी अगेन फॉर दिस, एआई का उदाहरण देने के लिए। एआई ड्रिवन पेडागोजिकल शिफ्ट की जब हम बात करें, तो हम पहला प्रश्न ये देखते हैं कि हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिस में गैप कहां पर है। एक गैप हम कहां पर देखते हैं। जब तक हमें कोई जगह ना मिले तब तक ये प्रश्न रहेगा कि हम क्यों टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। हमने एक ये जगह दिखाई, वो जगह क्या है कि लेक ऑफ ट्रेनिंग है। टीचर्स बार बार फरियाद करते हैं कि लेक ऑफ ट्रेनिंग है, मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे ये नहीं आता है। तो ये बड़ा गैप है कि उनको ये बताए, ओरिएंट करे कि आप सेल्फ लर्निंग क्यों नहीं करते हो, आप टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं पूछते कि आपको क्या सीखना है। क्या वो नहीं सिखा पाएंगी? हम जैसे लोग कहेंगे, जिग्नेश भाई भी है जिसने भी काफी वर्कशॉप्स किए थे एमएस टीम्स सिखाने के लिए, बहुत सारे टीचर्स को एमएस टीम्स गवर्नमेंट की ओर से आया था कि सब स्कूल में एमएस टीम्स का इस्तेमाल करें, तो काफी कठिन था वो सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसने भी काफी ट्रेनिंग दी थी। तो जिग्नेश भाई ने कहां से सीखा होगा, उसने कहां से ये सब सीखा होगा? क्या कोई ऊपर से आशीर्वाद आया होगा, स्वर्ग से कुछ डाउनलोड होके उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया होगा? नहीं, उसने रातों जाग कर, बहुत सारे वीडियोस देखकर, बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़कर, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट कर कुछ सीखा होगा, सेल्फ लर्निंग की होगी। तो ये इसलिए वो एक गैप। और दूसरा गैप हम पेडागोजी में देखें कि कहां पर है, जो मैं भरपाई करना चाहता हूं। तो हमारी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज में हम देखें तो हमें ये मुद्दे दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो है वो, उसकी बात मैं अभी करूंगा, बाकी के मुद्दे आज हम नहीं देखेंगे, शायद पूरे दिन में वो कवर हो भी जाए। लेकिन पहला मुद्दा जो है 1-to-1 ट्यूटरिंग विथ जनरेटिव एआई, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हम जनरेटिव एआई टूल से भरपाई कर सकते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स स्किप कर लेता हूं अभी यहां से, और लेट मी कम टू दिस पॉइंट। हाँ, यहां पर आते हैं। बेंजामिन ब्लूम को हम जानते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को भी हम जानते हैं। बेंजामिन ब्लूम का एक आर्टिकल था, उसमें 2 सिग्मा प्रॉब्लम की उसने बात की थी। The search for the methods of group instructions and effective as 1-to-1 tutoring. तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि एक कन्वेंशनल लर्निंग का कर्व है, जो नीचा कर्व है वो कन्वेंशनल, शायद आपको पूर्ण रूप से दिखाई न दे,
लेकिन आप ये नाम याद रखोगे और गूगल को पूछोगे तो आपको ये कलरफुल पिक्चर भी मिलेंगे। 2 सिग्मा प्रॉब्लम, ये आप याद रखिए। और फिर मुगलेश्वर महादेव को आह्वान दीजिए और वो सब कुछ आपके सामने प्रकट कर देगा। कन्वेंशनल लर्निंग का एक कर्व है, उसके ऊपर मास्टरी लर्निंग का कर्व है और उसके ऊपर 1-to-1 ट्यूटरिंग का कर्व है। कन्वेंशनल लर्निंग की गैप भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जगह है बीच में, समय ज्यादा लगता है और कहां तक हम पहुंच पाते हैं तो वो कर्व दिखाया है वहां तक हम पहुंच पाते हैं। यहां तक हम पहुंचे और इतना बड़ा कर्व है। मास्टरी लर्निंग का कर्व छोटा हो जाता है और हाइट बढ़ती है। 1-to-1 ट्यूटरिंग में और भी कम समय में हम ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं 1-to-1 ट्यूटरिंग के लिए। तो हम ये जानते हैं कि 1-to-1 ट्यूटरिंग बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये दे पाना मुश्किल है, दे पाना स्टूडेंट्स को। इवन आपका बहुत छोटा क्लास है, 25 स्टूडेंट ही है आपके क्लास में, फिर भी आपके लिए जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वहां पर हर एक स्टूडेंट को उस मुद्दे की बात करना, विगत में बात करना, डिटेल में उसकी चर्चा करना 1-to-1 मुश्किल होगा। थोड़ा जनरलाइजेशन तो हम करेंगे, हमारी बहुत सारी कॉलेजेस में तो 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो कैसे 1-to-1 ट्यूटरिंग कर पाए, जो हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो एक गैप है, ये गैप भरपाई करने के लिए हम देखते हैं कि जनरेटिव एआई टूल हमें कैसे काम लग सकता है। ये जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन मैंने सलमान खान के टेड टॉक से ली है। सलमान खान जो खान एकेडमी चलाते हैं, उसने ये टेड टॉक का टाइटल है हाउ एआई कुड सेव नॉट डिस्ट्रॉय एजुकेशन। हाउ एआई कुड सेव एंड नॉट डिस्ट्रॉय एजुकेशन। ये मुद्दा क्यों महत्व का है? ये मुद्दा इसलिए महत्व का है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि एआई को प्रतिबंधित कर दो, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये स्कूल कॉलेज में नहीं लाना चाहिए, इससे बर्बादी हो जाएगी। तो काफी प्रतिबंधित रूप से लोगों ने एआई को देखा है। और वहां तक ये स्क्रीन भी आप देखिए, इसमें सबसे नीचे वाली स्लाइड है, या पूरा आप देखिए कि न्यूयॉर्क में प्रतिबंध हो रहा है। बहुत सारे प्रोफेसर कहते हैं कि इससे चीटिंग हो रही है। चैट जीपीटी एंड द डेथ ऑफ एजुकेशन, मृत्यु घंट भी बजा दिया बहुत सारे लोगों ने, तो कि चैट जीपीटी आने से मृत्यु घंट, डेथ ऑफ एन एजुकेशन हो जाएगा। Even people like Noam Chomsky had very critically said the false promise of Chat GPT also. इसका मतलब कि Chat GPT या जनरेटिव एआई टूल के सामने बोलने वाले आवाज बहुत बड़ी आवाज है, बहुत बड़ी आवाज है, और ये मानने वाले कि इससे एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इससे सब बर्बादी हो जाएगी, ये मानने वाले ज्यादा है। इसलिए सलमान खान ने इस टेड टॉक में उसके सामने एक आर्ग्यूमेंट्स रखी है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखी है। वहां पर इस 2 सिग्मा प्रॉब्लम की वो बात करते हैं कि यूजिंग एआई टू प्रोवाइड 1-to-1 ट्यूटर फॉर एवरी स्टूडेंट एंड अ टीचर, टीचिंग असिस्टेंट टू एवरी टीचर। वो कहते हैं कि एक तो आप हर स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर दे सकते हो, वो भी मुफ्त में, और हर एक टीचर को आप एक टीचिंग असिस्टेंट भी दे सकते हो। दोनों चीजें हो सकती है, टीचर को एक टीचिंग असिस्टेंट मिल जाता है और स्टूडेंट को एक ट्यूटर, पर्सनलाइज्ड ट्यूटर मिल जाता है। इस बात को देखते हुए हमने प्रयोग किया, एक्शन रिसर्च किया हमारे डिपार्टमेंट में कि चलो बात तो अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन नॉम चॉम्स्की जैसे लोग हैं, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो मना भी कर रहे हैं। तो चलो हम एक प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या आ सकता है। तो हमने एक प्रयोग किया, हमारे क्लासरूम में भी हमने इस एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया, और इस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स ने जो इंटरनल टेस्ट दी थी हमारे यहाँ, जो वो टेस्ट तो जैसे रेगुलर टेस्ट होती है जहां क्लासरूम में लोग जाते हैं, अपनी मेमोरी के आधार से जो याद रहता है अपनी नेचुरल स्टाइल में वो जवाब लिखते हैं, नेचुरल स्टाइल में। तो वो रियल लाइफ सिचुएशन थी, वो ऐसी बनाई हुई सिचुएशन नहीं थी। जैसे हम जब प्रयोग करते हैं प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट, तो वो एक बनाई हुई सिचुएशन में काम कर रहे हैं।
तो बनाई हुई सिचुएशन में जो रिजल्ट आते हैं वो इतने विश्वसनीय नहीं होते, रिलायबल रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल्ड ग्रुप है उनके साथ हम अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें बार बार मिलता रहे, जो हाइपोथेसिस हमारी है वो जस्टिफाई होती रहती है। इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट में जो स्टूडेंट्स जैसे काम करते हैं उनका स्टडी करना महत्वपूर्ण रहता है। एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे स्टडी होते हैं, कंट्रोल ग्रुप के साथ हम काम करते हैं, तब ये एक उसका लिमिटेशंस रह जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये किया कि नेचुरली उन लोगों ने एग्जाम्स लिखे अपनी नेचुरल स्टाइल में, अपनी जो गलतियां उनसे होती है भाषा की वो गलतियां होगी, जो कंटेंट उसको जैसे समझ में आता होगा वैसे ही आता होगा, जैसे वो लिख पाते हैं वैसे ही वो लिख पाते हो। तीनों चीजें, जैसे अपनी भाषा का उनका कंट्रोल, उसकी मेमोरी, उस कंटेंट को याद रखने की, और उनकी अभिव्यक्ति, तीसरा उनकी अभिव्यक्ति कैसे होगी वो भी नेचुरली ही वहां पर होगी। तो उसी जवाब पर हमने काम करने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए। चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई टूल का इस्तेमाल करना मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना, प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग करना, प्रॉम्प्ट बनाना, वही उनका सीक्रेट है। अगर आप बच्चों को सिखा दो कि इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बनाना सीखो तो वो अपने आप अच्छे रिजल्ट लाने लगेंगे। जो प्रॉम्प्ट अच्छे नहीं बना सकते वो जनरेटिव एआई से डिससेटिस्फाइड रहते हैं, जो फरियाद करते हैं कि इससे ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। बहुत बार वो अच्छी तरीके से पूछ नहीं पाते, प्रॉम्प्ट करना मतलब पूछना, वो अच्छे से पूछ नहीं पाते, इसलिए वो नहीं। जब हम ये प्रश्न पर आते इस मुद्दे पे कि पूछ नहीं पाते, उसके पास ठीक ढंग का प्रश्न नहीं है, उसके पास ठीक ढंग का प्रश्न नहीं है, तब हम फिर से उसी बात की ओर चले जाते हैं जब लोग कहते हैं थे कि 21वीं सदी में जो दिक्कतें होगी लर्निंग की वो जवाब नहीं होगा, वो प्रश्न होगा। जवाब चारों ओर मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्रश्न ही नहीं होंगे तो वो जवाब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स को ये सिखाना होगा कि प्रश्न कैसे पूछे, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। वो हमारी एक बहुत बड़ी पेडागोजिकल चेंज लाने की जरूरत होगी कि स्टूडेंट्स को ये कहे कि आपको क्या चाहिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए प्रश्न कैसे पूछे। और आज हम उस दौर में आ चुके हैं जनरेटिव एआई के साथ कि यहाँ पर हम कैसे उसको पूछे। तो प्रॉम्प्टिंग की बात हमने की, उनको हमने कहा कि ये लिखो कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और मैं मेरे इस जवाब का इवेल्युएशन करवाना चाहता हूं, और किस तरीके से CEFR गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क है, जो आईलेट्स और टॉफेल की जो एग्जाम्स होती है फॉरेन जाने के लिए, उनकी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लैंग्वेज का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप मेरा मूल्यांकन करो। तो हमने मूल्यांकन का एक स्टैंडर्ड भी सेट करके रखा कि ये मूल्यांकन का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आप ये स्टडी करो। ये प्रश्न था, इस प्रश्न का मैंने इस तरीके से जवाब दिया है। अब आप मुझे कहो कि मैं A1 से C2 के लेवल में कहां पर आता हूं। CEFR गाइडलाइंस के अनुसार C2 हाईएस्ट लेवल है, C2 हाईएस्ट लेवल है। जिग्नेश भाई 11:30 बज गए, मैं 5 मिनट में ही मेरी बात खत्म करूंगा। तो C2 लेवल हाईएस्ट है, A1 कम लेवल है। इस हिसाब से मुझे बताओ कि मैंने जो ये जवाब लिखा है, नेचुरली जो जवाब लिखा है एग्जाम के एनवायरनमेंट में, वो कहां पर आता है। देखो, आप अगर आप स्टूडेंट्स को कहो कि आपका जवाब चेक होगा इस तरीके से, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं और कॉन्शियस होकर सब कुछ ठीक से अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, तब हमें नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत रहती है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप के साथ जब हम काम करें, तब वो ग्रुप कॉन्शियस रहता है कि मेरा आउटपुट जो है उसका मूल्यांकन होने वाला है। यहाँ पर हमने क्या किया कि उस आउटपुट का उसको पता नहीं था कि ऐसे मूल्यांकन होगा, और वो मशीन से करेंगे, सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से वो करेंगे। तो ये कहा उनके लिए। तो एक जवाब स्टूडेंट्स का आपकी स्लाइड हमारी स्क्रीन पे है, और यहाँ पर जनरेटिव एआई चैट जीपीटी ने ये रिस्पॉन्स दिया कि आपका जो ये जवाब है वो B1 और B2 के बीच में आता है, B1 और B2 के बीच में। अगर आपको इसी जवाब को C2 लेवल पे ले जाना है, हायर लेवल पे C2 पे ले जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? 4 मुद्दे दिए। डेप्थ एंड एनालिसिस होनी चाहिए आपकी, डेप्थ एंड एनालिसिस आपकी, जस्ट अगर मुझे
यहाँ पर हम देखते हैं डेप्थ एंड एनालिसिस, ये है, ये डेप्थ एंड एनालिसिस आप करो, आप लैंग्वेज सोफिस्टिकेशन करो, आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करो, आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करो। कैसे करोगे उसके बारे में भी यहाँ पर लिख के दिया है, डिस्क्रिप्टिव दिया कि दिस इज हाउ यू कैन डू द थिंग्स। अगर ऐसे परिवर्तन आप करोगे तो आपका जवाब C2 का होगा। एक बात हुई, चलो प्रीचिंग हो गई। यहाँ क्या हुआ कि सलाह दी। ऐसी सलाह हम भी देते रहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जब आते हैं अपना राइटिंग लेके तो कहते हैं कि ये करो वो करो। सलाह देना आसान है। आप सोचिए कि आपने सलाह दी कि ऐसा करो, फिर स्टूडेंट्स ने अगर आपको ये कहा कि अब सर मुझे जो आपने सलाह दी उस हिसाब से लिख कर दो, उस हिसाब से लिख कर दो। अब ये एक बच्चा नहीं, आपका पूरा क्लास कहता है कि इस तरीके से मैंने ये आंसर लिखा है, मेरे ही आंसर को आप ठीक सही से जो आप प्रीचिंग करते हो, जो आप सलाह देते हो, उस हिसाब से लिख कर दो, तो आप सब स्वीकार करोगे, सब शिक्षक स्वीकार करेंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी। ये किसी ह्यूमन के लिए यह शक्य नहीं है कि पूरे क्लास के लिए उन लोगों ने जो जवाब लिखा है उस जवाब को, एक आदर्श जवाब की बात नहीं है यहाँ पर, एक आइडियल आंसर में तैयार करके दूं, ये बात नहीं है। जैसा जवाब स्टूडेंट्स ने लिखा है उसको आदर्श बनाकर दूं। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप है। क्या ये गैप कभी भी हम भरपाई कर पाएंगे? ह्यूमन नहीं कर पाएगा कभी भी। आप 10 असिस्टेंट लगा दो तो भी वो नहीं हो पाएगा। क्या मशीन ये कर सकता है? क्या जनरेटिव एआई वो कर सकता है? जब हमने यही चीज जनरेटिव एआई को दी तो उसने एक जवाब भी बनाकर दे दिया। ये जो मैंने प्रीचिंग की, ऐसा करो। आप अगर इस तरीके से ये जवाब लिखोगे तो आपको C2 उसमें मिल सकते हैं। तो मशीन ने जवाब भी लिख दिया। फिर बहुत अच्छे उदाहरण मिले। एक कंक्लूजन था एक स्टूडेंट का कि मेरा कंक्लूजन है, तो मशीन ने कहा कि ये B1 लेवल का कंक्लूजन है। अगर C2 तक पहुंचना है आपको तो आपको ये परिवर्तन करना है और ऐसे लिखना है आपको। एक और कंक्लूजन यहाँ पर था जो भी किया था। यहाँ पर एक स्टूडेंट का भी था कि कैसे इस पैराग्राफ को रिवाइज करे। तो जो कंटेंट, अंग्रेजी साहित्य के बारे में बहुत कुछ नेट पर अवेलेबल है, बहुत कुछ डेटा अवेलेबल होने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो कोई भी जवाब वो लिखे उनका अच्छा सा जवाब चैट जीपीटी जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत है इसके लिए। ये भी एक आंसर था। ठीक उसी तरीके से हमने उस पर काम किया। ये ओरिजिनल क्या था, रिवाइज्ड क्या था, ये हम देख सकते हैं। और जब हम स्टूडेंट्स से सर्वे किया कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है, तो तब उसने कहा कि वो इम्प्रूव्ड आंसर राइटिंग में मदद करते हैं। राइटिंग स्किल, एकेडमिक राइटिंग करनी है, ऐसे टाइप राइटिंग करनी है, ये कर सकते हैं। एनहांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो रही है, सेल्फ असेसमेंट स्किल डेवलप हो रही है, अपने आप अपना मूल्यांकन करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप वो स्किल डेवलप हो रही है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, आपने जो काम किया उस पर हम सोचते हैं फिर से, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इससे हो रहा है। तो हम देखें कि अगर इतना कुछ हो रहा है जनरेटिव एआई से, और इस इतने अच्छे तरीके से ये काम हमें लग रहा है हमारे प्रयोग में, हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम तो यही कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सालों से ओपन एआई की टीम पूरे 10 साल से काम कर रहे थे। 10 साल की मेहनत का ये परिणाम है। तो कोई जैसे वैसे ही नकार दे कि ये तो बकवास चीज है, तो हमें लगे कि नहीं, ये काफी चमत्कारिक चीज है। इसके पीछे काफी ह्यूमन ब्रेन लगा है, काफी इंटेलिजेंस इसके पीछे लगी है, तब जाके ये चीज बनी है। और ये बेहतरीन बनती जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत काम लग सकती है, बहुत अच्छे तरीके से हमें ये यूजफुल हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी। शायद कुछ आइडियाज आपको भी इसमें मिलेंगे। तो जिग्नेश भाई, इस बात से मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इन सब लोगों के साथ बात करने के लिए आपने ये मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार भी है। થેન્ક યુ સર. બારડ સરની આ કીનોટ સ્પીચથી આપણે સૌએ સ્વીકારવું જોઈએ કે હવે ચોક એન્ડ ટોક પેડાગોજીનો મૃત્યુઘંટ યુવા ટીચર્સ એટલીસ્ટ વગાડે એ જરૂરી છે.
એક મોટું ખુલ્લું આકાશ ICT ના માધ્યમથી આપણી સૌ પાસે છે કે જેનાથી ઘણું બધું કામ આપણે એવું સ્વીકારી શકીએ કે આજે જે ટૂલ્સનો પરિચય આપણે મેળવીએ છીએ એ અથવા તો જે સિલેબસમાં હવે આવે છે એ ટૂલ્સનો સર છે એ છેલ્લા 10 વર્ષથી ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પ્રેક્ટિસમાં મૂકી રહ્યા છે અને સારું એવું પરિણામ પણ એમણે જોયું છે. એટલે એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સંસ્થા પરિવાર વતી હું ડોક્ટર દીપ્તિબેન કુંડલને વિનંતી કરું કે સરનો આભાર માને. દીપ્તિબેન. જી નમસ્કાર સર. શ્રીમતી MM શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, વઢવાણ શહેર, સુરેન્દ્રનગર. અમારી કોલેજનું આ એક સરસ મજાનું આયોજન ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ ગોહિલ તરફથી એમના નેતૃત્વ હેઠળ થયું છે. AI આસિસ્ટેડ ટીચર્સના આ વર્કશોપ અંતર્ગત ભાવનગર યુનિવર્સિટીનો વૈભવ આજ અમારા કોલેજના આંગણે થયો એનો અમને ખૂબ આનંદ છે. રજીસ્ટ્રેશનનો જે દિવસોનો ગાળો હતો સાહેબ, એ વખતે જ અમારા પૂર્વ તાલીમાર્થીઓ અને તમારે ત્યાં ભણ્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓના સંપર્કો અને એમાં એમની વિશેષ નોંધ આવે કે બારડ સાહેબ એટલે અમારા યુનિવર્સિટીનું ઘરેણું, અમારું ગૌરવ. તો એવો મેસેજ જોયો ત્યારથી બહુ ઇંતેજારી હતી અને એ ખરા અર્થમાં વિદ્યાર્થીઓની જે રિવ્યુ એ વખતે મળ્યા હતા એ આજ ચરિતાર્થ થયા. યુવા શિક્ષકોને આપે પ્રેરિત કર્યા અને વડીલ શિક્ષકોને પણ પ્રેરિત કર્યા કે આ કોઈ હાવ કે ભય જગાડે એવી બાબત નથી, કોઈ નુકસાનકારક બાબત નથી અને દરેક વિગતને રિસર્ચના આધારે સરસ મજાની રીતે બધાને સમજાઈ જાય એવા મોડમાં પ્રસ્તુત કરીએ બદલ સંસ્થા પરિવાર વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આમ અમારું ફિલ્ડ એજ્યુકેશન એટલે અમે CK ભોગાઈતા સાહેબના આશીર્વાદ ખૂબ મેળવ્યા હોય, ખૂબ શીખ્યા હોઈએ, પણ આજ અમારો એ આનંદનો સમય કે આપની પાસેથી અમે હવે જે સિલેબસમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવા જઈ રહ્યું છે એવી વિગતો બહુ અગાઉ શીખી રહ્યા છીએ. અને આપે કહ્યું એમ જ ડોક્ટર જિગ્નેશ ગોહિલ છે એ અમારા કોલેજના માત્ર નહીં પરંતુ હું એવું કહીશ કે અમારા યુનિવર્સિટી અને અમારા વિસ્તાર ક્ષેત્રનું ટેકનોલોજીનું બહુ આદરપૂર્વક નામ લેવાય છે એવું યુવા નામ છે. અને જે સમયમાં MS ટીમ્સમાં માત્ર લોગિન થયા હતા એ સમયે અમારી કોલેજ અસાઇનમેન્ટ સુધીના કામ કરી શકી હતી ડ્યુરિંગ કોવિડ. તો એ ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ ગોહિલના કારણે જ. એટલે એક સરસ મજાનો અવકાશ એમણે ઉભો કર્યો. આ વર્કશોપ છે એના માધ્યમથી એસોસિએટ પ્રોફેસર્સ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર્સ, શાળાના માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો, આચાર્યો, પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો, ભાવિ શિક્ષકો અને અભ્યાસક્રમમાં જોડાયેલા માસ્ટર્સ અને ગ્રેજ્યુએશનના વિદ્યાર્થીઓનું એક બહુ જ વૈવિધ્યસભર જૂથ આજે કોલેજના આંગણે જોડાયું છે અને આપના જ્ઞાનથી સૌ અત્યારે આ પહેલા સેશનમાં લાભાન્વિત થયા છે. સૌના વતી આપના પ્રત્યે સંસ્થા પરિવાર તરફથી પણ આપના પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. પુનઃ આપ સૌનો આભાર. ટેકનિકલ સેશનને ટેકનિકલ હેલ્પફુલ થતી તમામ ટીમ, અમારી MM શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનની યુવા ટીમ જે પ્રતિબદ્ધ છે અને આ કાર્યને સરસ રીતે સંપન્ન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, એમને પણ હજુ બીજા સેશન માટેની શુભેચ્છા સાથે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. ધન્યવાદ. જિગ્નેશભાઈ. ઓકે, સારું. હવે બીજા સેશનની સૂચના માટે થઈ અને થોડો સમય જોડાયેલા રહીશું. બારડ સર હવે લીવ થઈ શકે છે. સર. Okay. Thank you everybody. Thanks a lot. Wish you all the best for the entire day. Yeah. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. ઓકે, પહેલું સેશન આપણું સારી રીતે ટેકનિકલ ઇસ્યુ વગર કદાચ જોડાયેલા આપણે સૌ રહ્યા અને સારી રીતે એને ઓપરેટ કરી શક્યા. ટીમ્સ થોડી હેવી સોફ્ટવેરની દ્રષ્ટિએ હોય એટલે કદાચ ટેકનિકલ ઇસ્યુઝ કોઈકને ક્યાંક આવતા હોય એવું બને, પણ
જાજા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય ત્યારે ફ્રી વર્ઝન અન્ય પ્લેટફોર્મ ઉપર બહુ સારી રીતે ઓપરેટ થઈ શકતા નથી, એટલે આપણે ટીમ્સને પસંદ કરી છે. બીજા સેશન માટે થોડી માત્ર 2 મિનિટ વાત કરી અને આપણે જુદા પડીશું. પ્રવૃત્તિઓનું સેશન છે. ઓનલાઈન માધ્યમથી ફિઝિકલ જેટલી કે એના જેવી પ્રવૃત્તિઓ કદાચ આપણે ન કરી શકીએ એવું બને, પણ એક લક્ષ્ય એવું છે કે શક્ય હોય એટલા ટૂલ્સ આપણે જોઈએ, એનો પરિચય મેળવીએ અને જ્યાં થઈ શકે ત્યાં તમે પણ એને ઓપરેટ કરો. ડિવાઇસ બીજી જો અવેલેબલ હોય તો તમને એ વધારે સરળતા રહેશે એના ઓપરેટિંગ માટે. મોબાઈલથી પણ એ થઈ શકશે અને લેપટોપમાં પણ થઈ શકશે. જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં લિંક આપણે મેસેજ બોક્સમાં શેર કરીશું કે જેથી કરી અને તમે એ ટૂલમાં જઈ શકો. લોગિન ક્યાંય માગે તો જીમેલ આઈડીથી તમે જે મોબાઈલમાં લોગિન હશો એનાથી જ તમે લોગિન થઈ શકશો. પણ શક્ય હોય એટલી પ્રવૃત્તિઓ તમે પણ કરો અને ગ્રુપમાં શેર કરી શકાય તો નો ડાઉટ તમે કરો. તમારી પ્રવૃત્તિને પણ બધા શેર કરીશું તો કદાચ ઘણા બધા ફોટોગ્રાફ્સ, સ્ક્રીનશોટ્સ ગ્રુપમાં આવશે, એવું થશે. પણ જે ટૂલ આપણે જોઈએ એ ટૂલમાં એટલીસ્ટ તમે હેન્ડ્સ ઓન થોડું ટ્રાય કરો એવી પણ અપેક્ષા રહે. એ ન કરી શકો તો સહેજ નોંધી લ્યો કોઈ બુકની અંદર કે આ ટૂલ આના માટે ઉપયોગી છે, જેથી કરી અને પછીથી તમે એ ટૂલ નો ઉપયોગ છે સારી રીતે કરી શકો. આવી એક વ્યવસ્થા આપણે વિચારીએ છીએ. 1:45 પછીથી જોડાવાનું શરૂ કરીશું. હવે કદાચ જોડાઈ ગયા છીએ એકવાર એટલે કંઈ બહુ વાંધો નહીં આવે. ટીમ્સમાં પહેલી વાર અનુભવ કોઈનો હતો તો એમને કદાચ ઇસ્યુ કે એરર આવી હશે. પણ હવે 1:45 પછીથી તમે શરૂ કરશો એટલે અહીંયાથી આપણે એન્ટ્રી આપવાનું શરૂ કરીશું અને 1:15 આજુબાજુ આપણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત બીજા સેશનની કરીશું. 4 થી 4:30 આપણો સમાપન રહેશે. બહુ ટુ ધ પોઈન્ટ ચાલવાનું છે, એમાં કંઈ બહુ લાંબુ અમે સમજી શકીએ આપણે સૌ કે ભાઈ ઓનલાઈનમાં બહુ કંઈ લાંબી વિધિઓ ઉદઘાટન કે સમાપનની હોતી નથી. એટલે પણ આપણે છેક સુધી જોડાઈ અને મહેમાન ને સાંભળીશું. અડધી કલાકમાં એક્ઝેક્ટ 4:30 એ પૂરું થાય એવા આપણા પ્રયત્નો હશે. એટલે છેક સુધી આપણે જોડાયેલા રહીશું. છેલ્લે આપણે ફીડબેક ફોર્મ પણ આપીશું જે તમે સબમિટ કરશો એટલે તમને સર્ટિફિકેટ મળશે. એને લગતી સૂચના પછીથી પણ આપીશું. બાકી યસ, સંદીપ કુમાર પ્રજાપતિ કંઈ હોય તો તમે કહો. થેન્ક યુ સર. સર સેકન્ડ સેશન જે આપણું છે ને, સેકન્ડ સેશન તો શક્ય બને તો એનો રેકોર્ડેડ વિડીયો બી આપણે ગ્રુપમાં શેર કરજો સેકન્ડ સેશન માટે. આ બંને સેશનના રેકોર્ડિંગ્સને કોઈક રીતે ઉપલબ્ધ આપણે કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ સર. સારું, તો સૌ મળીએ બીજા સેશનમાં. હવે આપણે લીવ થઈ શકશું. હેલો. હા જી. હા સર, મીટિંગ કન્ટિન્યુ રાખવાની છે કે ફરીથી રીજોઈન કરવાની? લીવ થઈ જઈશું અને સેમ લિંક થી ફરીથી જોડાઈશું. લીવ થઈ જશો તો ચાલશે. અચ્છા, અત્યારે લીવ થઈ જાય ને બધા? હા હા. ઓકે, થેન્ક યુ સર.